आप बोले अभी पीएसएल का पैसा आएगा नहीं आएगा, बस वही श्रद्धा वही विश्वास। जब कंपनी चालू थी तब आपके फेस पर विश्वास चलता था, वही विश्वास हम आज भी हमारे पास है। આજે પણ એક વિશ્વાસ લઈને અમે ચાલી રહ્યા છે। અને દોસ્તો, હું દરેક મિત્રને દરેક વ્યક્તિને કહીશ કે અમારા અવિનાશ સાહેબ આખો પ્રોગ્રામનું જનલોક પટિશન સંગઠનની યુટ્યુબ ચેનલ પણ બની ચૂકી છે અને એનો પ્રોગ્રામ ડાઉનલોડ કરીને પછી મીટિંગ પતી ગયા પછી 1-2 દિવસમાં લિંક પણ મોકલીશું। એ લિંકને પણ તમે સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી કરીને આપણે સંગઠનને મજબૂતાઈ મળે અને તમારા આપણા બધાના માધ્યમથી પૈસા પાછા જલ્દીથી આવે અને એનો પ્રોગ્રામ પણ તમે જોઈ શકશો। અહીંયાનું જે બી અત્યારે થઈ રહ્યું છે એ 1-2 દિવસ પછી તમે જોઈ શકશો। તો આપણા માટે એ સારી વાત છે કે અવિનાશ સાહેબે પણ આના માટે બહુ સારી મહેનત કરી છે અને યુટ્યુબ ચેનલ આપણી જનલોક પટિસ્તાની બની ચૂકી છે। એના માટે જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત કરો, જેમને ખૂબ જ મહેનત કરી છે દોસ્તો। અને સાથે સાથે હું દરેક મિત્રને જણાવીશ કે જનલોક પટિશન સંગઠનની પૂરા ગુજરાત માટે એક સર્વિસ સેન્ટર ખોલવામાં આવ્યું છે, જે આપણે બરોડા ગેડા સર્કલ પાસે સાથી કોમ્પ્લેક્સમાં જ્યાં પીએસએલની ઓફિસ હતી એની બાજુમાં જ એક નાની ઓફિસ છે। ત્યાં સર્વિસ સેન્ટર દર શનિવારે અમે ખોલતા હોઈએ છીએ, પણ દરેક મિત્ર અમે કહેતા હોઈએ છીએ કે તમારે શુક્રવારે અમને કોલ કરીને આવવાનું। હાલાકી ગ્રુપ તો અમે બનાવ્યું છે, એમાં મેસેજ મૂકીએ છીએ, પણ દરેક વ્યક્તિને અમે ગ્રુપમાં જોડી નથી શકતા અને જોડવું હોય તો એના માટે 500 રૂપિયા ફીસ રાખી છે અમે। કારણ કે વકીલને અહીંયા કોઈ પણ વ્યક્તિ કેસ લડતો હોય સુપ્રીમ કોર્ટનો, કાંઈ તમારો મારો ભય હોય ને તો પણ પૈસા માગે, વગર પૈસા નથી લડાતો। આજે જનલોક પટિશન સંગઠન કાનૂની લડાઈ લડી રહ્યું છે ને, એ કાનૂની લડાઈની અંદર મેડમ પુરાવા આપશે, 3-3 લાખ રૂપિયા ફી લાગે છે તો સુપ્રીમ કોર્ટની એમની જે ઓફિસ હોય ને એમાંથી પગ બહાર કાઢે છે। આટલી મજબૂતાઈથી લડી રહ્યું છે, આટલા વિશ્વાસથી લડી રહ્યું છે, તો તમારો પૈસો તો જરૂરથી આવશે દોસ્તો। કારણ કે પહેલા જ મેં તમને કીધું, તમારી પાસે શું છે? પીએસએલ સર્ટિફિકેટ, સામે શું છે? પીએસએલ જમીન છે, કોની પાસે છે? સુપ્રીમ કોર્ટે, અને એ ઓલરેડી એમાં નંબર લાગેલા છે। આજે એની પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ, જમીનની પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ તો વધતી જ રહે છે અને વધતી જ રહે છે, ઘટવાની થોડી। એટલે એ વિશ્વાસ સાથે, અને જ્યારે બી અમે કદમ મેડમ સાથે બેઠા છે, જ્યારે પણ મીટિંગ કરી છે, એક વિશ્વાસ એમની પર છે, એમને આપ્યો છે એમને કે પીએસએલ का पैसा हम लेके रहेंगे। કારણ કે આપણે કોઈ એજન્સી જોડથી ડોનેશન નથી માંગવાનું। કેમ કે આપણા જ પૈસાથી લીધેલી જમીન ગવર્મેન્ટ એજન્સી પાસે છે અને એનું સેલ આઉટ કરીને આપવાનું છે। તો દોસ્તો 6 ફેબ્રુઆરીએ આની સુપ્રીમ કોર્ટમાં ડેટ છે, એના તાત્કાલિક ધોરણે આ મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને ઘણા બધા મિત્રોએ અમને મેસેજ પણ આપ્યા હતા કે 19 જાન્યુઆરી મેરેજની સિઝન છે, તમે થોડી પાછળ ખેંચો। તોય અમે કોશિશ કરી, કારણ કે પરમિશનનો પણ બાંધ હતો, મેરેજની સિઝન હતી, તો ગમે તેટલું દરેકને મેરેજ તો આવવાનું, કારણ કે આ જાહેર સભા છે અને જાહેર સભાની અંદર દરેક વ્યક્તિ પીએસએલ પીડિત વ્યક્તિ આવી શકે છે। તો એને લીધે અમે આ 19 તારીખ ખૂબ જ નજીક સમયની અંદર આયોજન કર્યું અને આપ સૌએ સહયોગ આપ્યો। ભલે અહીંયા આપણે 200 જણ આવ્યા છે, પણ હું તમારા માધ્યમથી એવું કહેવા માંગીશ કે આ 200 જણ 20,000 લોકોને મેસેજ આપે અને એ જ 20,000 માધ્યમથી 20 લાખ લોકો જોઈએ આ મેસેજ। એવી તમારી પોતાની ઈચ્છા હોવી જોઈએ, પોતાની તાકાત એવી હોવી જોઈએ, એવી વિચારધારા હોવી જોઈએ। એ જ વિચારધારાથી હું અત્યારે કામ કરી રહ્યો છું। હું ભલે સિંગલ છું પાછળ, પણ હું એવું સમજુ છું મારી પાછળ આ બધી તાકાત ઉભેલી છે। હું પાછો નથી હટતો, મારાથી 1500 કિલોમીટર દૂર હોય છે, આ સાહેબ 50-100 કિલોમીટર દૂર હોય છે, પણ એમની વિચારધારા, એ સોચ, જે રીતે રામ ભગવાનની, જે રીતે હનુમાનજીની અંદર રામ ભગવાનની ભક્તિ હતી ને, એ રીતે ભક્તિ મેં જનલોકની મૂકેલી છે। શાના માટે? પીએસએલના પૈસા પાછા લાવવા માટે। અને પીએસએલના પૈસા પાછા એટલા માટે આવવાના કે પીએસએલની સંપત્તિ છે એટલા માટે। દરેકના મગજ ખોલવા તો ખોલી નાખજો। પીએસએલના પૈસા 1000% આવશે। કેમ? તમને સર્ટિફિકેટ પીએસએલ આપ્યું છે, એ જ પીએસએલના સર્ટિફિકેટથી પૈસા લીધા, પીએસએલના એકાઉન્ટથી ટ્રાન્સફર થયા છે, એના બધા જ પુરાવા છે। અને જનલોક પટિશન પૂરા ઇન્ડિયામાં જે તે સમય કંપની ચાલતી હતી, 369 ઓફિસો હતી અને જેટલી બી પૂરા ઇન્ડિયાની જમીન જે હતી, એને જે પૈસા, એના તમામ દસ્તાવેજો, એના કાગળ એમની ઓફિસમાં કેવી રીતે રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટ એમને કેવી રીતે કરાય, બહુ મહેનત કરી છે। તમે તમારું એક
મકાનનું કાગળ કે તમે સર્વેમાં જોજો કેટલા પૈસા આપવા પડે છે. બહુ જ કઠિન મહેનત કરી છે, જબરદસ્ત મહેનત કરી છે. પોતાનું ફેમિલી છોડીને જાય છે. ઘણી વખત અમને દયા આવે છે. જ્યારે કોર્ટમાં જતા હોય છે ને ત્યારે અમને ફોન બી કરતા હોય છે અને એ ફોનની અંદર અમને તરત જ કહેવામાં આવે છે આ કરો, ગુજરાતી કરો, ઇંગ્લિશ કરો, આ કરો, કાનૂની લેંગ્વેજમાં કરવાનું હોય છે. ઘણો સમય આપવો પડે, ભોગ આપવો પડે છે. ઘણા બધા મિત્રોને હું કહેતો હોઉં છું કે મને હેલ્પ કરો, પણ કોઈ કરે કે ના કરે, પણ મારું એક જ મકસદ છે. હું અર્જુનની જેમ વિચારું છું. મને એક જ વસ્તુ દેખાય, નિશાન આ, એને મારે એક નિશાન બનાવવું છે. તો એક તાકાતથી, એક શક્તિથી અમે 2017 ની અંદર જે પીએસએલની 220 વીઘા જમીન હતી ને, એ 200 વીઘા જમીનની અંદર 2013માં આપણું મેટર વચ્ચેથી મૂકી દીધું હતું. જે તે અધિકારી હતા અને એ કંપનીની જમીન જે લીધી હતી, ઓલરેડી ફાર્મરને પૈસા અપાઈ ચૂક્યા હતા, છતાં 200 વીઘાની અંદર ફાર્મરનું નામ હતું, પીએસએલનું અને લોરા કમિટીનું નામ નહોતું. અને એ 2 વર્ષની અંદર 2019 થી લઈને 2022 સુધી 3 વર્ષ સુધી કાનૂની લડાઈ, અને ત્યાં અમે જે તે પ્રાંત ઓફિસની અંદર, ડભોઈ પ્રાંત ઓફિસની અંદર જોરદાર લડત આપી. એમાં મારી બરોડા કમિટીના તમામ સદસ્યો મને ફૂલ સપોર્ટ કર્યો. અહીંયા જે ડૉક્ટર પરેશ પટેલ સાહેબે બી ખૂબ સપોર્ટ કર્યો, જે લોકલ વ્યક્તિ છે, સોલંકી સાહેબ છે, નગીન પટેલ સાહેબ છે, અને કદમ સાહેબ મેડમનો પણ મને સમય સૂચન મળતા ગયા. અને તે સમયની અંદર 2 થી 3 વર્ષના દરમિયાનની અંદર 4 નાયબ કલેક્ટરની બદલી થઈ. અને મારી પાસે એટલી બોલવાની છટા નથી કે આ અધિકારી સામે આ લોકો સાથે આવી રીતે વાત કરી શકાય. છતાં મેં ડિબેટ કર્યું હતું. અને દર વખતે જ્યારે પણ કંપનીનું સારું થયું છે ને, ફેબ્રુઆરીમાં મહિનામાં જ થયું છે. અને 2 ફેબ્રુઆરી 2022ની અંદર મને નથી ખબર, 2 દિવસ પહેલા હું એમની જોડે ફાઇટ કરીને આવ્યો તો 29 જાન્યુઆરી અનિલભાઈ સાક્ષી છે, પેલા બેઠા છે, અનિલભાઈ ખુદ સાક્ષી છે. 20 મિનિટ મેં ડિબેટ કરી હતી. લેડીઝ નાયબ કલેક્ટર હતી. મેં કીધું તમે પીએસએલ ની જમીનની અંદર નારાયણ લોડા સાહેબને પીએસએલ નું નામ કેમ ના આવે, શા માટે ના આવે? ફાઇટ આપી હતી. એના 2 દિવસની અંદર મને ત્યાંના સરપંચની પીડીએફ ફાઇલ મોકલી કે પીએસએલ નું નામ બી આવી ગયું, ખેડૂતનું નામ હટી ગયું, નારાયણ લોડા સાહેબનું નામ આવી ગયું. આ 200 વીઘા જમીન અમે કન્ટિન્યુટી કરી, પણ અમે કોઈ દિવસ લોકો સામે શેર નથી કરી. જનલોક પ્રતિષ્ઠાન સંગઠનની જેટલી બી કમિટી કામ કરે છે ને, એ બહાર નથી બતાવતી, કામ કરીને બતાવે છે. આ તાકાત છે, આ જનલોકની તાકાત છે. તો હું એક કહેવા માંગુ છું સૌરાષ્ટ્રથી આવેલા મારા તમામ મિત્રોને કે સુરેન્દ્રનગરમાં જે જમીન છે ને 700 વીઘા, એ કોઈના બાપની નથી, આપણા પીએસએલના ઇન્વેસ્ટરની છે. અને હું તમને કહેવા માંગુ છું, મારા જેવા 4-5 જણને ઊભા કરી દો, ત્યાંની પણ જમીનની અંદર ઘણા લોકોએ પીએસએલ ને 2014 પછી પણ વારસાઈ કરાઈ છે. ઘણા લોકોએ એને વેચાણ કરી છે. એ બધી જમીન પીએસએલ ના નામે પાછી થઈ શકશે અને આરએમ લોડાના આઈમાન મને લાગી શકશે. કારણ કે ઓલરેડી મેડમે 200 કલેક્ટરને એપ્લિકેશન કરી દીધેલી છે. તો બસ દોસ્તો, બહુ વધારે ના કહેતા, ઘણા બધા પોઈન્ટ, ઘણી બધી વાતો અમારા જે રાષ્ટ્રીય કૃતિ સમિતિ પુનાથી, મહારાષ્ટ્રની જે ટીમ આવી છે, એ તમને માર્ગદર્શન આપશે. તો એમના માટે પાછું રાખીશ. તો આપ સૌ જોથી 2 હાથ જોડીને હું એટલી રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પીએસએલ માટે, જનલોક પ્રતિષ્ઠાન સંગઠનને તમારા પૈસા પાછા મેળવવા માટે સપોર્ટ કરજો દોસ્તો. બસ. અને અમારા નિવેશકને કહીશ કે અમારા એજન્ટ મિત્રો, કાર્યકર્તા ખૂબ દિલથી મહેનત કરી રહ્યા છે. આવી લડત કોઈ સંગઠને, કોઈ કાર્યકર્તાએ નથી આપી, ફક્ત આ પીએસએલના વ્યક્તિઓ આપી છે. આ એક જીતું જાગતું ઉદાહરણ છે, હિસ્ટ્રી છે. બસ. જય હિન્દ, જય ભારત. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ જયમેશભાઈ. ગુજરાતીની ડિમાન્ડ મૂકવામાં આવી, હિન્દી એટલા માટે કે મેડમને બધા સમજી શકે એટલા માટે મારે બોલવું પડે છે. પણ એમને જે ગરમજોશીથી તમારી આગળ જે વાત રજૂ કરી, આ એમને એમ શબ્દો મોઢામાંથી નથી નીકળતા. રાત દિવસ અમે બધાએ એક કરી છે. લડાઈ અમારી પણ છે, લડાઈ તમારી પણ છે. જિમ્મેદારીની જ્યારે વાત આવી ને, ત્યારે શરૂમાં 2017ની અંદર દાદા ભગવાનના મંદિરની અંદર કાર્યક્રમ રાખ્યો તો મેડમને ઇન્વાઇટ કર્યા હતા. ત્યારથી અમે એક વસ્તુ બીડું ઝડપ્યું છે. સાહેબ તમને નહીં ખબર હોય, પણ અમે અંદરથી એવું નક્કી કર્યું છે કે પૂરા ગુજરાતના કસ્ટમરોના પૈસા અમે અપાવીશું. અમારું આ પહેલું મિશન હતું. આખા ગુજરાતના કસ્ટમરોના પૈસા અપાવીશું, આ અમારું મિશન હતું. તે વખતે વિઝન અમે મોટું નહોતું કર્યું, ત્યારે અમે આ નક્કી કરેલું હતું. અને એ જ મુહિમને ધીરે ધીરે આગળ ચાલતા ગયા.
અમારે મહારાષ્ટ્ર જવાનું હોય, અમારે પૂના જવાનું હોય, અમારે દિલ્હી જવાનું હોય, ટ્રેનમાં જવાનું હોય, શરદીમાં જવાનું હોય, ચોમાસામાં જવાનું હોય, ઉનાળામાં જવાનું, અમે બધા મિત્રો એકબીજાની સાથે કન્ટ્રીબ્યુશન કરીને થોડા થોડા પૈસા કાઢીને અમે જતા હોઈએ છીએ. આ લડાઈ એવી નથી. ઘણી તકલીફો અને મુશ્કેલીઓ પડે છે, પણ અહીંયા તકલીફોના મુશ્કેલીઓના રોદણા રડવાનો દિવસ નથી. લડીને નીકળવું છે અને જીતીને નીકળવું છે. આજે નહીં તો કાલે PSL ના તમામ કસ્ટમરોના પૈસા અમે પાછા અપાવીશું અને તે પણ જનલોક પ્રતિષ્ઠાન બેનર હેઠળ હશે. એ લખી રાખજો સાહેબ. લોઢા કમિટી હોય, સેબી હોય, CBI હોય, દરેક જે જેમેશભાઈ હમણાં વાત કરી કે જે બધા અધિકારીઓ છે ને એ મેડમ જ્યારે એમને મળવા માટે જાય ને, શરૂમાં જ્યારે જનલોકની શરૂઆત થઈ ત્યારે કહેવાનો મતલબ એન્ટ્રી નહોતા આપતા, પણ જેમ જેમ એમને ખબર પડતી ગઈ ને અને સુનંદા કદમ મેડમ આવ્યા છે, ચિઠ્ઠી લખીને આપવું પડે, ત્યાં મળવા માટે મુલાકાતી આવ્યા છે, એમની ચેર ઉપરથી, એમની ખુરશી પરથી ઊભા થઈને બહાર આવે છે. એ તાકાત છે કે નથી? જનલોક પ્રતિષ્ઠાને એમને એમ કાંઈ નથી કીધું. જેમેશભાઈ જે રીતે વાત કરી, કોર્ટ પુરાવા માંગે. શું માંગે? પુરાવા, પ્રૂફ જોઈએ કોર્ટમાં. બીજું કંઈ ના ચાલે. આપણે બહાર ગમે એટલું બોલીએ, કશું ના મેળ પડે. આપણા વતી વકીલ લડે. કોણ લડે? કોર્ટમાં આપણને બોલવાનો અધિકાર નથી. આપણા વતી કોણ બોલે? વકીલ બોલે. વકીલને સમજાવવાનું, અને વકીલને સમજાવતા મેડમને આખો દિવસ જાય. 10-10 કલાક વકીલ સાથે ચર્ચા કરવી પડે, અને ત્યારે વકીલ આખી સ્ક્રિપ્ટ બનાવે અને 10 મિનિટની અંદર ત્યાં રજૂ કરવાનું હોય કોર્ટમાં. હું હાજર છું સુપ્રીમ કોર્ટમાં. એ 10 મિનિટની અંદર જે વાતનું બહાતું ત્યાં આપવાનું હોય, અને એના માટે જે અગાઉથી તૈયારી કરી, સુટકેસના બેગ ભરેલા છે, 5 થી 6 બેગ ભરેલા છે ડોક્યુમેન્ટ્સના વિથ પ્રૂફ સાથે કે આટલી પ્રોપર્ટી છે. PSL ની પ્રોપર્ટી કંઈ કમ નથી. મોટા પ્રશાસન જે છે ને, સેબી હોય, CBI હોય, એ આંકડા મેળવવામાં કન્ફ્યુઝ છે. અમારી પાસે વિઝન પણ કમ્પ્લીટ છે, આંકડા પણ કમ્પ્લીટ છે, અને કેટલું આલવાનું છે ને એ પણ અમારા વિઝનમાં કમ્પ્લીટ છે. અમે એમને ખાલી એટલું જ કીધું છે કે તમે એકવાર એ કહી દો કે કેટલા લોકોને પૈસા આપવાના છે અને કેટલા આપવાના છે, આટલું અમને કહી દો. હજુ સુધી નથી કહેતા, કેમ કે એમને ખબર છે સાચું કહેવા જવું તો ભીડાઈ જઈશું. તકલીફ આ છે, રીડ કી હડ્ડી જેવું થયેલું છે, નહીં નીકળ શકતે નહીં ઉગલ શકતે, આવી સ્થિતિ આ સેબી વાળાની થયેલી છે. અને એમની હાલત એટલી પતલી થઈ ગઈ છે. આમને સામને સેબીના જે વકીલ છે વેણુગોપાલ, લખી રાખજો, સેબીના વકીલ વેણુગોપાલ જે આપણી સામે ફાઇટ કરે છે, અને આપણા જનલોકના જે વકીલ છે ને એ વેણુગોપાલને કોર્ટના માધ્યમથી જવાબ આપે છે. પોર્ટલ ઉપર જે પ્રોબ્લેમ હતા ને એ બધા પ્રોબ્લેમનું એક લિસ્ટ બનાવી અને આપણે આઈએના માધ્યમથી સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર આપેલું છે. એટલા માટે કે એ લોકો સારી રીતે સમજી શકે કે અમારા પ્રશ્નો આ છે. આજે ગુજરાત કમિટીના માધ્યમથી આપણે અહીંયા ગુજરાતમાં બધા ભેગા થયા છે. કોલ્હાપુર સમિતિની વાત કરીએ, મહારાષ્ટ્રની વાત કરીએ, પુણેની વાત કરીએ, રાજસ્થાનની વાત કરીએ, MPની વાત કરીએ, જ્યાં પણ જનલોકના સંગઠનો ચાલે છે, તમામ મિત્રો આવી રીતના કાર્યરત છે. જેમેશભાઈએ જે રીતના વાત કરી, અમે ગમે એટલું કામ કરીએ, અમે કોઈ કહેતા નથી. વાત કહેવાની અહીંયા એટલા માટે છે કે અમે શું કર્યું છે તમને રૂબરૂ ખબર પડે. બાકી અહીંયા કોઈ વાહવાહીની વાત નથી. ઇન્ડિયામાંથી અમે જણાવવાની કોશિશ કરી છે કે અમે જાગીએ છીએ, અમે જીવિત છીએ. એનો મતલબ એ છે કે જનલોકના પૈસા આવવાના છે અને છે. હરેક વસ્તુનો એક સમય હોય. હવે તો કોર્ટ અને પ્રશાસનને તમે આપણે બધાએ હવે તો આટલી સફર તય કરી, હવે તો કોર્ટને પણ કંઈક ને કંઈક તો જવાબ આપવો પડશે ને. હા અથવા તો ના કહેવું તો પડશે ને, વચ્ચે થોડી લટકાવશે. અને એના માટે પૂરી તાકાત લગાડવાની છે. અને એના માટે જે અમે ફીસ ચૂકવીએ છીએ, બધી ફીસ તમારા માધ્યમથી 100 રૂપિયા, 200 રૂપિયા, 500 રૂપિયા, 1000 રૂપિયા. નવનીતભાઈ હમણાં 5000 આપીને ગયા ગાડી, બરાબર છે. આ રીતના કહેવાનો મતલબ તમારા એક રૂપિયાનો હિસાબ ઓડિટ સાથે જનલોક પાસે છે. એક પણ રૂપિયો અવળે રસ્તે નથી જવા દીધો. અમે ક્યાંક નાસ્તો કે ચા માટે પણ ઉભા રહીએ ને તો અમે સસ્તી હોટલ હોતી, સસ્તો ઠેલો હોતીએ, લારી વાળો હોય ત્યાં ઉભા રહે કે ભાઈ 10 રૂપિયાની ચા 5 રૂપિયામાં મળે. એક રૂપિયો બચાવવાની કોશિશ કરી છે. અમે એક જ જગ્યા ઉપર બધા નીચે પાથરીને સુઈ જઈએ છીએ. જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર જતા હોઈએ છીએ ત્યારે પણ અમે પૈસા બચાવવાની કોશિશ કરીએ. અમારા મગજમાં એક જ વાત હોય કે આ ગ્રાહકના પૈસા છે, યોગ્ય રસ્તે જવા જોઈએ. અને તો જ કહેવાનો મતલબ કે પુણ્ય અને સાર્થકતા અને ઈશ્વર મદદ કરશે. એક પણ રૂપિયો ગેરમાર્ગે છે લોકો આજ તક લીધી નથી વાપરી. કરકસર કરી છે ને, આ લડાઈ લડી છે ને એ આપણા બધાના માટે લડી છે.
એવું નથી કે એકલા માટે લડી છે. અને આ લડત આપવામાં જે પણ સંગઠનો અને સમિતિઓ આપણી વચ્ચે છે એમાં હું આમંત્રિત કરીશ चांगलेसर कोल्हापुर कृति समिति के अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित है. मैं उनको आपके सामने पेश करूंगा, वो भी अपनी बात रखेंगे. वेलकम सर. हेलो, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे. कोल्हापुर कृति समिति के अध्यक्ष हैं जिन्होंने हमारे जैसे साथियों के साथ मिलकर के बहुत सारी हेल्प जनलोक प्रतिष्ठान के साथ खड़े हुए हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. वेलकम सर. धन्यवाद राजू सर. सबसे पहले हम सबका स्वागत हुआ है, राजू सर का स्वागत रह गया है. और राजेश सर प्लीज, नहीं सर प्लीज आ जाए, सर प्लीज, बाद में चलो सर प्लीज आ जाए. नहीं मैडम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनका भी स्वागत किया जाए. धन्यवाद. मंच पे उपस्थित जनलोक प्रतिष्ठान की संगठना के अध्यक्ष सुनंदा कदम मैडम, यहाँ पर उपस्थित सब स्टेज पर रोकनर सर, सचिन सर, अमित सर, परमार जी, कांचन मैडम और आप सब उपस्थित यहाँ पर, आप सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ. सर जी ने अभी हमारे जोगेश सर ने बहुत कुछ बताया. मैं कोल्हापुर में जैसे आप यहाँ पर आए, संगठना जैसी यहाँ पर कार्यरत है, वैसे कोल्हापुर में भी संगठना आनी चाहिए. कोल्हापुर में भी मैं संगठना में कैसे आया हूँ ये मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर क्यों आए हैं इसका जवाब तो आपको मिलने ही वाला है. जैसे ही कंपनी 2014 में बंद हो गई और थोड़ी देर के बाद सब जो है कंपनी का सेबी और लोढ़ा कमेटी के पास चला गया और हम सब लोग निश्चित हो गए कि हमें आप लोढ़ा कमेटी पैसा देंगे. हम घर में अपने घर में निश्चित हो गए कि हमें आप लोढ़ा कमेटी और सेबी पैसा देंगे. हम सब लोग निश्चित हो गए. थोड़ी देर में एक पोर्टल ओपन हो गया. एक पोर्टल के ऊपर सेबी ने बताया कि इस पोर्टल के ऊपर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे आप अपलोड कीजिए. ठीक है, उनकी बात हम मानकर सब अपलोड कर दिया. अपलोड करते समय कुछ लोगों ने सिर्फ अपना एक सर्टिफिकेट था उतना ही अपलोड किया. कुछ लोगों ने पहला सर्टिफिकेट और लास्ट का किसका जो स्लिप था उतना ही किया. मतलब आधी जानकारी के लेकर हमने वो सब कुछ किया और उसके बाद एक के ऊपर एक प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने खड़े हो गए. जैसे कि आपको पता है कुछ लोगों ने पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड भी किया फिर भी पैसा वापस नहीं आया. कुछ लोगों ने अभी तक अपलोड किया ही नहीं है, कुछ लोगों को अभी तक पता भी नहीं है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, आपके इधर भी हमारे इधर की भी है. तो ये जब पोर्टल चालू हुआ, अभी पोर्टल बंद भी हो गया, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हम सब लोगों के सामने. तो ये प्रॉब्लम लेके हम जाएंगे किसके पास? किसको पूछेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट रह गए, हमारे प्रॉब्लम हो गए, ये लैंड अलॉटमेंट में यस हो गए, हमारे एक्नॉलेजमेंट का प्रॉब्लम है, ये सब लेके हम किसके पास जाएंगे? जैसे आप लोगों के सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया, वैसे मेरे सामने भी ये प्रश्न खड़ा हो गया. मैं इस कंपनी में 15 साल तक काम करता था, मेरे सारे जूनियर्स मेरे पास आ गए. अब हम क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, किसको पूछेंगे? यहाँ पे तो कोई पूछने वाला है ही नहीं. सेबी ने एक टोल फ्री नंबर दिया था, उनको पूछा तो आप लोगों ने किस लोगों ने कॉल किया होगा उस पर, तो वहाँ से क्या जवाब आता था आप लोगों को पता है. तो ये सारे समस्या सामने खड़े होते हैं. उस वक्त जैसे जनलोक प्रतिष्ठान संगठना है वैसे बहुत सारी संगठनाएं वहाँ पर थी. हमारे इधर एक संगठना खड़ी हो गई शंकर पुजारी नाम से, पता होगा अमित सर को, मैडम को भी पता होगा. उन्होंने बताया ऐसी मीटिंग ली और उन्होंने बोला कि आपके जितने डॉक्यूमेंट है वो सब डॉक्यूमेंट हमारे पास लाजिए, हम आपको पैसा वापस करेंगे. तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए. एक बार मीटिंग हो गई, उसके बाद वो आदमी भी गायब हो गया. 200 रुपये सबके पास से ले गए, वो गायब हो गया वहाँ से. कुछ लोगों ने, मेरी टीम में से कुछ लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी उसको दे दिया.
और कुछ साल के बाद वो मेरे पास आ गया, ऐसा ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं। अभी जिसको पास दिया है उसके पास जाओ, पूछो उसको। तो मेरे को कहना यह है कि उस वक्त जैसे जनलोक संगठन है, जैसे वो पुजारी की एक संगठन थी, ऐसे बहुत सारी संगठनाएं वहाँ पे काम कर रही थी। ऑल ओवर इंडिया में चल रहा था, हर एक के अलग अलग संगठन चल रही थी। लेकिन जो ओरिजिनल संगठन है, जो ओरिजिनल काम कर रही है, जो कोर्ट के साथ, कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ पे जाके बताकर जो काम कर रही है, वो एकमेव संगठन जो है वो जनलोक संगठन थी। और ये सब हमने जांच पड़ताल किया और फिर मैंने अपनी टीम की एक मीटिंग ली और हमने वहाँ पे बता दिया कि हमें जनलोक संगठन के साथ ही हमें काम करना है और हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ, अगर सिर्फ कोई सॉल्व कर सकता है वो तो वो सिर्फ जनलोक संगठन ही कर सकती है, सुनंदा कदम मैडम ही कर सकती है। और ये प्रॉब्लम सब लोगों को हमने बताया और हम इस संगठन में आ गए। और उस वक्त से जो भी प्रॉब्लम्स हमारे हैं, आपको भी पता है, आपने भी यहाँ पे आपकी जो संगठन के लोग काम कर रहे हैं उनके पास जो भी प्रॉब्लम है, एक कॉल किया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मतलब आपका जो क्वेश्चन है, ये डॉक्यूमेंट्स ऐसा ऐसा हुआ है, जो भी बैंक का डिटेल्स प्रॉब्लम आता था, जो मतलब हमने अपलोड जो डॉक्यूमेंट्स किया है तो उसका भी कुछ लोगों को रिटर्न मिला है, कुछ लोगों को रिटर्न बैंक डिटेल्स पे कुछ डिफॉल्ट है, उसके लिए वापस नहीं आया, तो वो कैसे करने का। तो ये सब किसके माध्यम से पूरा हो रहा है, वो सिर्फ जनलोक माध्यम से ही पूरा हो रहा है। तो हम लोगों को इतना ही कहना है कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, सभी लोगों का एक ही कहना है कि हमारा पैसा कब मिलेगा, हमारा प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा। यही सब लोगों का क्वेश्चन है, यही सब लोगों का एक ही प्रॉब्लम है। सब लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए, आप सभी लोग भी यहाँ पर आए। हमें सिर्फ आप लोगों का सहकार चाहिए, इस संगठन को सहकार चाहिए। कदम मैडम के पीछे हम सब लोग रहेंगे ना, रहेंगे। तो हम सब लोगों को कदम मैडम के साथ रहने का है और सेबी को और उनको दिखाने का है गवर्नमेंट को कि इनके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं और हम कुछ भी बोल के हमें इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। इनका जो भी प्रॉब्लम है वो उनको सुनना ही पड़ेगा। आज की ताकत में इतने सारे अभी भी प्रॉब्लम हमारे हैं। अब एक्नॉलेजमेंट का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आज कौन सुन रहा है? सिर्फ कोर्ट के माध्यम से हमारी जो जनलोक संगठन के जो वकील है वहाँ पे हमारे सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे बताते हैं कोर्ट के सामने, तो वही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। आजकल बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर कि इसका कोई भी संगठन आती है वो बोलते हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो बताए कि उनका कौन सा वकील है, उन्होंने आज तक कितने केस गए हैं, कौन से वकील के साथ से उनका काम चल रहा है संगठन का, वो हमें यहाँ पर आके बताइए। इंडिया में अगर कोई काम कर रहा है जो लीगली प्रोसेस से काम कर रहे हैं तो ओनली सिर्फ जनलोक संगठन कर रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप सब लोग एक साथ रहे, जनलोक संगठन के साथ रहे। आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं तो आज सारी बातें यहाँ पर सुनकर जाइए। आपके मन में जो भी प्रॉब्लम है वो सारे प्रॉब्लम्स आज इस मीटिंग के माध्यम से सॉल्व होने वाले हैं। और मेरा यही कहना है कि लास्ट तक आपको यहाँ पर बैठकर आपको पूरा सुनना है और ये सुनकर ही आप यहाँ पर जाएंगे, ये आपसे मैं विनती करता हूँ। और जाते जाते एक शेर मेरे को याद आया, मैं वो बोल के मेरी दो बातें मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। इंसानियत जिन पर नाच करती है, इंसानियत जिन पर नाच करती है, मजहब जिन पर फख्र करता है, वो शख्स सुनंदा कदम मैडम है जो सिंहासनों पर बैठ कर नहीं हमारे दिलों पर बैठ के राज करते हैं, हमारे दिलों पर बैठ के राज करते हैं, हमारे दिलों पर बैठ के राज करते हैं। धन्यवाद। मैडम आप भी अपनी बात यहाँ पे रखो, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें क्योंकि महिला कृति समिति के वो अध्यक्षा है और बहुत सारी बहनों के साथ वो इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर। अभी तो आपको हिंदी नहीं समझ में आती तो मराठी कैसी समझ में आएगी? बराबर ना? हिंदी में बात करने का तो मराठी नहीं।
आदरणीय व्यासपीठावर उपस्थित असणारे माझे सर्व जनलोक प्रतिष्ठान के रणरागिनी कदम मैडम और उनके साथी आबासाहेब रुपनर, सह सचिव सचिन कडलक सर, महाराष्ट्र राज्याचे काम करणारे आंबी सर, परमार सर और कोल्हापुर कमेटी से वो जो अध्यक्ष काम करते हैं वो चौगुले सर, और यहाँ पे कन्विंसिंग करने वाले राजेश सर, और आप सबको इकट्ठा करने वाले रमेश सर, नगीन सर और सभी साथियों सबका धन्यवाद, शुक्रिया। और आप यहाँ पे सब लोग आए हैं। जनलोक क्या है, जनलोक में जनलोक क्या काम करते हैं, जनलोक कैसे काम करते हैं और मेरा पैसा कैसा मिलेगा, इसलिए आप लोग यहाँ पे सब आए हैं, बराबर। पैसा तो मिल ही जाएगा, लेकिन पैसा मिलने के लिए आप सबको इकट्ठा आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। एक साथ आकर एक संगठित होकर आप काम करेंगे तो बहुत आसान से आपका काम होगा, क्योंकि जनलोक प्रतिष्ठान हमेशा कदम मैडम बोल रही कि जनलोक प्रतिष्ठान सुनंदा कदम मैडम एक अकेले काम नहीं कर सकते, तो आप सबका साथ है, इसलिए जनलोक प्रतिष्ठान काम कर रहे हैं, बराबर है ना। तो आपको ये रखना चाहिए, पहले खुद से पूछना चाहिए कि मैं जनलोक के साथ है क्या, आप सब लोग जनलोक के साथ है क्या, है या नहीं, आपका पहला प्रश्न आपको पूछना चाहिए। तो आप जो होगा वो तो अच्छा बात है, लेकिन जो नहीं है तो आप जनलोक के साथ आ जाओ, एक इकट्ठा आकर, एक समूह के आकर आप जो काम होगा तो सहज ही हो, क्या बोलते हैं, आसान हो जाएगा। तो आसान होने के लिए आप संगठित होना चाहिए। संगठित होने के लिए जो भी तुम्हारा गुजरात कमेटी है, गुजरात कमेटी वालों ने जो भी आपको बोला है वही काम, वो डॉक्यूमेंटली होगा, कौन से भी होगा, वो मीटिंग की होगा, वो भी आप इकट्ठा आकर उनको साथ देना चाहिए, क्योंकि अकेला कोई भी काम नहीं कर सकता। डॉक्यूमेंटली होगा या अकेला मेहमान होगा, वो कोई भी काम नहीं कर सकता। संगठित होकर जो आप काम करेंगे तो आपको सहज हो जाएगा, इसलिए आप संगठित होकर काम करना ही होगा, करना पड़ेगा। नहीं तो आप जिधर बैठे हो, जिधर सोच रहे हो कि मेरा पैसा आएगा, मेरा पैसा मिलेगा, तो कभी भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आज सुनंदा कदम मैडम और पूरा कमेटी काम कर रही है, फाइट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, लेकिन उधर क्या प्रॉब्लम है, उधर आने वाले जो प्रॉब्लम है वो जनलोक प्रतिष्ठान, उनकी पूरा कमेटी है, उनको मालूम है कि वो कैसे काम कर सकते हैं, लेकिन आपका साथ मिलेगा तो आसानी हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक ही बोलने वाली है कि आप हाँ, तो क्या होता है, तुम्हारा लैंग्वेज तो गुजराती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा हिंदी आएगा तो थोड़ा खुशी नहीं रहते, क्योंकि अभी बहुत मेरी महिला गए क्योंकि क्या है, उनका प्रॉब्लम वही कि हिंदी में बात चल रहा है। अभी तो मैं मराठी में बात करूँगा तो आपको कोई सुनने नहीं आएगा, लेकिन हमारी भाषा यही है कि आपको अच्छा लगती है। तो मेरी भाषा मराठी है, तो मराठी में बात करने के लिए आप मुझे बोलेंगे ना तो मैं बहुत अच्छे संगठित होकर बोलेंगी। हाँ, इसलिए वो मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है, लेकिन सुनने के अच्छा लगते हैं, लेकिन बोलने में थोड़ा अड़चन आती है, दिक्कत आती है। तो अभी स्कूल में जाने के लिए भी ज़रूरत है, हिंदी में बात करने के लिए आना चाहिए, इसलिए तो यही हास्य बात, लेकिन थोड़ी मैं अभी मराठी में बात करने वाली। तर आप
आपल्या सर्वांना एकत्र येऊन खरोखर आपल्याला काम करायचं आहे, कारण जनलोक प्रतिष्ठान तुमच्या आमच्यातल्या सर्वांच्या मधला एक दुवा आहे. आणि जर कदम मॅडम आपल्याबरोबर काम करत असतील, एक महिला काम करत असेल, तर आपल्याला काम करायची कसलीच अडचण येणार नाही. कारण की आजपर्यंत जनलोक प्रतिष्ठानसारख्या अनेक संस्था उभ्या राहिल्या, अनेक कमिटींनी काम केलं, पण जनलोक प्रतिष्ठानसारखी आज एकमेव संस्था आहे, एकमेव संघटना आहे की ती आजच्याला सुप्रीम कोर्टमध्ये फाईट करते. आणि जर अशा पद्धतीने जर ती फाईट करत असेल, आज आपलं नाव आपल्या लोकांसाठी जर उज्ज्वल करत असेल आणि आपला PSLच्या कस्टमरचा एक रुपया देण्यासाठी जर प्रयत्न करत असेल आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत जनलोक प्रतिष्ठानच्या कदम मॅडमचं नव्हे तर सर्व संघटनांबरोबर काम करणारे प्रत्येक व्यक्तीचा शब्द आहे की आम्ही शेवटचा पैसा मिळेपर्यंत आम्ही संघटनेबरोबर काम करणार, आम्ही लोकांचा पैसा देण्यासाठी प्रयत्न करणार. तर आपल्या इथं बसलेल्या गुजरातमधील सगळ्याच लोकांना एक विनंती असेल की आपण जनलोक प्रतिष्ठान बरोबर एकत्र येऊन आपल्या गुजरात कमिटीच्या सर्वच लोकांच्या बरोबर एकत्र येऊन आपण कमिटीला साथ देण्यासाठी खूप प्रयत्न करायला पाहिजे. कारण की इथं बसून आपल्याला असं वाटतं की फाईट फार सोपी असेल, एवढी काही अडचण नसेल, आमचा पैसा मिळेलच. पण पैसा मिळवणं इतकी सोपी गोष्ट नाहीये. आपण सहज एखाद्या व्यक्तीला उसनं पैसा दिला तर तो आपल्याला कोणी देऊ शकत नाहीये. तर आज जर आपण कंपनीला पैसा दिलेला आहे तर तो पैसा आपल्याला जर सुप्रीममध्ये गेला असेल, जर अशा ठिकाणी आपल्याला आपल्याच पैशासाठी जर आपल्याला कोर्टामध्ये उभं राहावं लागत असेल तर आपला पैसा कसा मिळेल? मग जर आपला पैसा मिळवायचा असेल तर आपल्याला संघटित होण्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे. संघटन एकत्र येऊन एकत्र काम करून आपण जो येणारा प्रॉब्लेम असेल, मग तो तुम्हाला पोलीस चौकीचा असेल किंवा इतर लोकांचा आपापसामध्ये सुद्धा असेल. कारण की आज आपल्याला आपल्या प्रत्येक व्यक्तीला आजूबाजूचा सिनियर असेल, काम करणारा किंवा ज्युनियर असेल, तरी माझे पैसे मला दे असं म्हणत असतो, बरोबर की नाही? तर त्यासाठी तुम्हाला लोकांचा पैसा जर द्यायचा असेल तर आपल्याला जनलोक बरोबर काम करावं लागेल, त्यासाठी एकत्र यावं लागेल. आणि एकत्र आल्याशिवाय पैसा भेटणार नाहीये, ही वस्तुस्थिती आणि ही सत्य परिस्थिती आहे. त्याच्यामुळे आपल्या सर्वांना एकजूट होकर काम करना ही होगा आणि करना ही पडेगा. तो भी पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो मैं भी नहीं बता सकती. इसलिए मैं आपके एक बार फिर से बोलूंगी कि जनलोक प्रतिष्ठान सामाजिक संस्था है, तो उनके संगठित होकर काम करना ही आपको पड़ेगा. आप सब लोग करेंगे ऐसे मैं आशा करती हूँ और मेरे 2 शब्द रखती हूँ. जय हिंद, जय जनलोक. कि आखिरी कस्टमर तक लड़ेगा और सबको पैसा देगा. मैडम ने मराठी में भी जो बात कही, आपसे संगठित रहने की बात कही. संगे शक्ति कलयुग है. कलयुगમાં સંઘ શક્તિ કામ લાગે છે. આપણી આ લડાઈમાં સંઘ જોઈએ, શક્તિ જોઈએ, સામર્થ્ય જોઈએ, સહકાર જોઈએ. કહેવા માટે 6 કરોડ છે અને ભેગા કરવાના થાય તો ઘરેથી આવવું પડે, રાતના આવવું પડે. સૌરાષ્ટ્રી મિત્રોએ કાલના નીકળેલા છે, આજે આવ્યા સવારમાં. આયા ને? એમનામાં રહેલી તાકાત એમને લઈને લાવી, કારણ કે મારે મારા કસ્ટમરના પૈસા આપવાના છે. હું આવતીકાલનો નીકળ્યો છું. મને ખબર છે કે મારે મારા કસ્ટમર નહીં, મારે તો આખા ગુજરાતને પૈસા આપવા છે. વિઝન મેં પહેલા કીધું, વિઝન મોટું થયું, આખા દેશને પૈસા આપવાના છે. ખબર નહોતી ક્યાં જવાનું છે. મજા નથી એ મંજિલમાં જે સફરમાં છે. અમે એ સફરને તય કરી છે. 10 વર્ષ એમને એમ નથી કાઢ્યા. રસ્તામાં જઈને ગાડી ટાયર ફાટે, ગાડી કઈ દિશામાં જશે ખબર નહીં પડે. ખંડાલા ઘાટમાં જઈને ગાડી હીટના ધુમાડા કાઢે, તારે ખબર પડે રાતના 2 વાગે ને 3 વાગે. એમ અહીંયા તો ગામમાં ફરવાનું હોય તો બીક લાગે 12 વાગ્યા પછી. બાકીના એરિયામાં જઈને કેવી રીતના રહેવાનું, છતાં પણ સંઘર્ષ કર્યો છે. અને આ સંઘર્ષ જિંદગીની એવી મૂડી છે અમારી પાસે. કદાચ જીવનમાં સફળતા મળી જશે ને, પણ આ સંઘર્ષ છે ને આખી જિંદગી યાદ રહેવાનું. તમે લડત લડી હતી અને વિશ્વાસ સાથે કહું છું, આની સફળતા મળશે મળશે ને મળશે. અમારી ઈચ્છા એ હતી કે ગુજરાતમાં એક મોટું ફંક્શન કરવાના છે, જેદાર પૈસા મળી જાય ને ત્યારે. અને મને વિશ્વાસ છે ગુજરાતના ખૂણા ખૂણામાંથી બધા આવશો ને સ્વયંભૂ રીતે, અને આ થશે. પરમાર સાહેબે જે વાત કરી 2025, જો કે અમારું ટાર્ગેટ તો 2024 પૂરું જ કરી નાખવાનું હતું,
તે પહેલા ટાર્ગેટ લગાવ્યું હતું કોરોનામાં, કઈ ને કઈ ડખો આવીને ઊભો રહી છે, પણ છતાંય પણ હિંમત નથી હારી. પણ 25 ની અંદર અમે એટલે સુધી પહોંચે. મેં કીધું ધીરજનો પણ એક પરીક્ષા બધાની થાય, તમારી થાય, મારી થાય, ને શાસન પ્રશાસન બધાની થાય. ઓલા કોર્ટમાં ખુરશી બેઠા ને એમની થાય કે નહીં થાય? વારે વારે જે 140 થી જયમેશભાઈએ કીધું 140 થી વધારે હિયરિંગ, 90% થી વધારે હિયરિંગ ની અંદર મેડમ હાજર છે. એમાં ઘણા હિયરિંગમાં તો અમે હાજર છીએ. મોટા ભાગના રિપોર્ટ જે આવે ને સુપ્રીમ કોર્ટના, એ બધા લગભગ 90% રિપોર્ટ મારા વાંચેલા છે. કહેવાનો મતલબ એ આગળ એ છે કે આપણે જે લડત લડી છે ને એમને એમ નથી, આપણે પ્રોપર રીતે એને જાણ્યા ને સમજ્યા છે, અને પૈસા મળશે. હવે હું આમંત્રિત કરીશ सचिन सर, सह सचिव श्री, कि वो हमारे बीच आएंगे. जनलोक प्रतिष्ठान के दाहिने और बाएं हाथ जिसे बोलते हैं, हर वक्त जहां भी जाना हो, कहीं भी मीटिंग हो, दिल्ली में जाना हो, कहीं भी ठहरना है, रुकना है, और जनलोक के सिंघम कहा जाते हैं उनको, पूरी ताकत से काम करते हैं. यहाँ आपसी तालमेल जो बना हुआ है ना, कोई किसी को नहीं पहचानता. कल मैडम ने पूछा था कि आप सब सीनियर जूनियर, कोई सीनियर जूनियर नहीं है. मैं उधर से आया, वो उधर से आया, वो उधर से आया, लेकिन एक ही मकसद था कि लोगों का पैसा दे. ये अविनाश भाई है, अनिल भाई है, हम किसी को नहीं जानते थे, लेकिन आज दिलो जान है. आज क्या है? दिलो जान है. और जब भी हम मिलते हैं ना, एक ही बात होती है, लोगों को पैसा दिलाना है. कैसे निकलेगा वो हम तय करेंगे, वो रास्ता हम बनाएंगे, जैसे भी निकलेगा. तो अभी आमंत्रित करता हूँ सचिन सर, आइए और आपका 2 शब्द हमारे बीच रखें, और जनलोक के सिंघम के लिए जोरदार ताली हो जाए. नमस्कार साथियों. नमस्कार. सर्वप्रथम आप जो बिखरे पड़े हो ना, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ. अभी तक हमने बहुत यहाँ पे डाइस पे बैठे हुए लोगों के लिए तालियां बजाई, जिन्होंने भाषण किया उनके लिए तालियां बजाई. अभी हम खुद के लिए ताली बजाएंगे, तो अब आप हम खुद के लिए जोरदार ताली बजाओ. जितनी जोरदार बजनी चाहिए उतनी नहीं बज रही है. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. अभी जय श्री राम की बहुत क्रेज चल रही है, बराबर है कि नहीं? एक बार जय श्री कृष्णा भी हो जाए, क्योंकि अभी हम गुजरात में आए हैं, तो जय श्री कृष्णा बोलना, जब हम एक दूसरे को मिलते हैं गुजरात में तो जय श्री कृष्णा बोलते हैं, बराबर है कि नहीं? जैसे हम लोग महाराष्ट्र में मिलते हैं एक दूसरे को तो राम राम बोलते हैं. तो एक बार जय श्री राम का घोष करेंगे. जय श्री राम. जय श्री राम. अभी जय श्री कृष्णा तो हो ही गया. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. अभी आपकी बहुत सारी समस्या जो है वो आपके वडोदरा कृति समिति के माध्यम से जनलोक के डायस तक पहुंची हुई है. सर्वप्रथम मेरी स्पीच को शुरुआत करने से पहले डायस पर उपस्थित जनलोक प्रतिष्ठान संगठन की अध्यक्षा सौ सुनंदा कदम मैडम, जनलोक प्रतिष्ठान के सचिव श्री आबा साहेब रुपनार, महाराष्ट्र कृति समिति के अध्यक्ष अंबी सर, कोल्हापुर कृति समिति के अध्यक्ष चौगुले सर, महाराष्ट्र कृति समिति की अध्यक्षा सौ कांचन मैडम, और यहाँ पे आप सभी को इकट्ठा करने का जो कार्य किया है उस गुजरात समिति का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ. हमने बहुत सारे लोगों के अभी स्पीच में सुना पोर्टल. तो ये पोर्टल क्या है और पोर्टल कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में आपको मैं थोड़ी जानकारी दूंगा. जनलोक प्रतिष्ठान के माध्यम से तो हम सभी ने जो ऑनलाइन पोर्टल में फॉर्म भरा है, तो ये पोर्टल क्या है किसी को मालूम है? पोर्टल का मतलब किसी को मालूम है? किसी को मालूम नहीं है. हमने
जो प्रक्रिया की, जो ऑनलाइन आवेदन हमने की, बराबर है, जो ऑनलाइन आवेदन हमने किए, वो प्रक्रिया क्या है वही हमें मालूम नहीं है, और ये प्रक्रिया किस लिए की जा रही है ये भी हमें मालूम नहीं है। हम लोगों का देखो कैसा है ना, भीड़ के साथ इकट्ठा रहने से कुछ मतलब नहीं होता है। भेड़ जो रहते हैं ना, भेड़ वो भीड़ में घूमते हैं, बराबर है ना। और शेर जो होता है, शेर अकेला होता है कि नहीं, लेकिन वो सबसे भारी होता है, बराबर। तो ऐसे बहुत सारे संगठनों की भीड़ पूरे भारतवर्ष में पड़ी हुई है, जो हमें बताते हैं कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया, हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, हम इधर धरना प्रदर्शन करेंगे, और लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये पूरी प्रोसेस के ऊपर गौर डालेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो 10 साल से जो काम चल रहा है वो सिर्फ जनलोक प्रतिष्ठान के माध्यम से चल रहा है। अभी जनलोक प्रतिष्ठान की नींव 15 मई 2015 में रखी गई। उसके पहले मैडम ने साठ कोर्ट में 2014 से लेकर 2015 तक साठ कोर्ट में जो हमारी प्रॉब्लम है वो माननीय सैट कोर्ट के सामने रखी। वहां से सैट कोर्ट से निर्णय आया कि भाई पीएसएल कंपनी की प्रॉपर्टी बेच के कस्टमर को पैसा देना है। तो उसके बाद सैट कोर्ट का जो निर्णय आया, उसके बाद कंपनी सुप्रीम कोर्ट में गई, और सारा आज जो मैटर चल रहा है वो सारा का सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जनलोक प्रतिष्ठान ने क्या किया था, 46,000 कस्टमर की कंप्लेंट्स ऑस्ट्रेलियन फेडरल कोर्ट में सबमिट की थी। ये जो पोर्टल है, उस पोर्टल का निर्माण कैसे हुआ वो आपको बता रहा हूं। जनलोक प्रतिष्ठान ने 46,000 कस्टमर की कंप्लेंट्स ऑस्ट्रेलियन फेडरल कोर्ट में की थी। तो ऑस्ट्रेलियन फेडरल कोर्ट ने वहां पे जो पीएसएल कंपनी की प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को फ्रीज करवाया, और प्रॉपर्टी फ्रीज करवाने के बाद लगभग 650 करोड़ 147 बिलियन डॉलर इतनी अमाउंट जो थी वो ऑस्ट्रेलियन फेडरल कोर्ट में फ्रीज करके रखी थी। जब जनलोक प्रतिष्ठान के माध्यम से 46,000 कस्टमर की कंप्लेंट्स ऑस्ट्रेलियन फेडरल कोर्ट में गई, और जब सभी को पता चला कि ये जो पैसा है जनलोक प्रतिष्ठान ने वहां पे फ्रीज करके रखा है, और ये जो संपत्ति है वो सारी संपत्ति भारत में आने वाली है, तब जाके फेडरल कोर्ट में सेबी ने एंट्री की। इतने दिन तक सेबी बोल रही थी कि हम इंडिया छोड़ के बाहर कोई भी प्रोसेस नहीं करेंगे, लेकिन जब जनलोक प्रतिष्ठान के माध्यम से पैसा इंडिया में आने वाला है ये भनक सेबी को लगी, तब सेबी ने फेडरल कोर्ट में अपना एंट्रेंस किया। तो फेडरल कोर्ट ने उन्हें पूछा कि भाई जैसे जनलोक प्रतिष्ठान ने 46,000 कस्टमर की कंप्लेंट्स ऑस्ट्रेलियन फेडरल कोर्ट में दर्ज की है, वो क्यों दर्ज की है कि हम पीएसएल कंपनी के कस्टमर हैं, और पीएसएल कंपनी बंद होने के बाद कंपनी की संपत्ति बेच के ही हमें हमारा पैसा मिलने वाला है। तो ये जो पैसा है वो हमारा पैसा है। कंपनी आज जो बड़ी हुई थी वो कस्टमर के पैसे के बदौलत बड़ी हुई थी। तो आज ये जो संपत्ति है, इस संपत्ति के ऊपर कस्टमर का अधिकार है। तो ऑस्ट्रेलियन फेडरल कोर्ट ने सेबी को पूछा कि भाई जैसे जनलोक प्रतिष्ठान के पास कस्टमर की कंप्लेंट्स है, वैसा कुछ डेटा आपके पास होगा। स्टार्टिंग में जब 2014 में पीएसएल कंपनी का प्रॉब्लम शुरू हुआ था, और सेबी ने जब पेपर में नोटिस जारी किया था कि भाई जिसे पैसा चाहिए वो सेबी के ऑफिस में आके पेपर जमा करे, तो लोगों ने बड़ी लंबी कतार लगा के वहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि भाई पैसा लेने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने उनके ओरिजिनल का जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सेबी के ऑफिस में सबमिट कर दिए। और आज ये वक्त है कि अगर आपके पास आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो जिन महाशकों ने वहां पे जाके अपने ओरिजिनल कागजात सेबी के मुख्यालय में जमा किए हैं, तो उनको पैसा मिलने वाला
नहीं है। तो ये पोर्टल जो है, इस पोर्टल का निर्माण ऑस्ट्रेलियन फेडरल कोर्ट ने जो सेबी को ऑर्डर दी थी, उस ऑर्डर के बाद ये पोर्टल का निर्माण हुआ। अब ये पोर्टल किस चीज़ के लिए ओपन किया गया था कि संपूर्ण भारत के जो भी बीएसएल कंपनी के ग्राहक हैं, उन सभी के आवेदन ऑनलाइन स्वरूप में सबमिट करने के लिए वो पोर्टल का निर्माण किया गया था। बराबर। यहाँ पे किसने ऑनलाइन पोर्टल में काम किया था? इतने लोग हैं। और पोर्टल का निर्माण क्यों हुआ वो पूछा तो किसी ने बोला नहीं, हाथ भी ऊपर नहीं किया। हम कौन से पोर्टल पे डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे? तो उसका जो था वो वेबसाइट क्या था? नहीं, www.sebipslrefund.co.in, बराबर है कि नहीं? तो वो जो पोर्टल का निर्माण किया गया था वो कस्टमर का रिफंड दिलवाने के लिए हुआ था, बराबर कि नहीं? तो हमने पोर्टल में हमारे आवेदन किए, लेकिन उस पोर्टल में जब जो फॉर्म फिल करना था उसकी जो जानकारी लेनी थी वो हमने नहीं ली। जब उस पोर्टल का निर्माण किया गया तो हमने मुंबई में जहाँ पे पीएसएल के ऑफिसेस थे, हमने बाहर खड़े होके लोगों को इकट्ठा करके ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में ट्रेनिंग दी थी। उसके बावजूद लोगों ने क्या किया, बहुत सारी मिस्टेक्स की, और उसके बदौलत आज हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने क्या किया कि भाई हाँ, घर के नजदीक कोई साइबर कैफे वाला है, साइबर कैफे में जाके उनके डॉक्यूमेंट्स जो आवेदन थे वो अपलोड करवाए। तो साइबर कैफे वाले ने सिर्फ उस समय ये सोचा कि भाई फॉर्म तो आ रहे हैं, तो ये जरूरत कस्टमर की है, तो उन्होंने क्या किया, इस माहौल का फायदा उठाया और पैसा कमा लिया। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर है कि जिन्हें एंड्रॉयड मोबाइल भी ऑपरेट करने नहीं आता है, सिर्फ कॉल उठाना और कट करना इतना ही पता है। तो ऐसे कस्टमर जो है वो ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे? जहां पे साइबर कैफे में फॉर्म भरवाए जा रहे थे, सारी की सारी डिटेल कस्टमर को पता नहीं थी, इसलिए साइबर कैफे वाले ने भी उसका गलत फायदा उठाया। बहुत सारे कस्टमर ने क्या किया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मतलब अपना जो पीएसएल का सर्टिफिकेट था उसके साथ लास्ट इंस्टॉलमेंट वाली रिसिप्ट जो थी वो अपलोड करवा दी। लेकिन जब सेबी ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था तो उन्होंने एक प्रश्नावली जाहिर की थी, उसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया था कि आपके पास पीएसएल का जो सर्टिफिकेट है उसके साथ भरे हुए जितने भी इंस्टॉलमेंट के रिसिप्ट है वो सारे के सारे आपको अपलोड करने हैं, बराबर। तो हम किसी भाई साहब ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जो फर्स्ट ओरिजिनल सर्टिफिकेट था उसके साथ लास्ट इंस्टॉलमेंट वाली रिसिप्ट अपलोड की। ठीक है। जब सेबी के तरफ से रीपेमेंट शुरू हुआ तो लोगों को सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट के पैसे आए। फिर लोगों में भगदड़ शुरू हो गई कि भाई मैंने तो पूरा इंस्टॉलमेंट अपलोड किया था, मैंने 60 इंस्टॉलमेंट भरा है, तो 60 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से मुझे 30-40 हज़ार रुपये आना चाहिए, तो मुझे सिर्फ 1100 रुपया ही आया है। तो ये 1100 रुपया क्यों आया, ये इसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। और फिर जन लोग ने लोगों में एक अवेयरनेस कैंप के थ्रू लोगों को बताया कि भाई ये जो पोर्टल में आने वाली जो खामियां थी, और जिन लोगों को पोर्टल पे आवेदन सबमिट करने के बाद सेबी की तरफ से रिफंड हुआ है, कम पैसा मिलने के, जो जिसको पैसा कम मिला है वो कस्टमर क्या करे, जन लोग ने जेपी पोर्टल का निर्माण किया था और उस जेपी पोर्टल पे ऑनलाइन कस्टमर की कंप्लेंट्स मांगी थी। लेकिन लोगों ने जिस राज्य में या जिस डिस्ट्रिक्ट में जनलोक प्रतिष्ठान के पोर्टल के बारे में जानकारी थी, वहाँ से बहुत सारी कंप्लेंट्स आई। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सेबी की तरफ से कम अमाउंट मिली है, फिर भी उनकी कंप्लेंट्स जनलोक तक आई नहीं है। तो आज इस सभा का जो मेन उद्देश्य है
ये उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमें सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट्स सबमिट करनी है। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादातर लोगों की सोचने की मतलब मेंटेलिटी ऐसी है ना, हम लोग बोलते हैं ना भाई तुम लड़ो हम कपड़ा संभालते हैं, बराबर है। तो लोग ऐसा बोलते हैं आज उसका मिला तो कल मेरा भी मिलेगा भाई, लेकिन तू प्रयास ही नहीं करेगा तो कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन आवेदन सबमिट ही नहीं किए हैं, उनके घर में सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं। तो अगर सर्टिफिकेट आपके घर में पड़ा हुआ है, आपने आवेदन ऑनलाइन नहीं किया है, तो फिर आपको पैसा कैसे मिलेगा। तो इन सारे कस्टमर की आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने के लिए जनलोक प्रतिष्ठान ने जो आज हमारे बीच में जो सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, जैसे हमने हमारे मूल दस्तावेज जो है वो पीएसएल के ऑफिस में सबमिट कर दिए हैं। वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद पीएसएल ने हमें एक रिसिप्ट दी है और ऑनलाइन पोर्टल में वो रिसिप्ट अपलोड करने का कोई सुविधा नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और पीएसएल की तरफ से दी गई रिसिप्ट ही अपलोड कर सकते थे। तो एक्नॉलेजमेंट का जो सवाल है वो अभी भी प्रलंबित है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद बहुत सारे कस्टमर की डेथ हो गई है। अभी डेथ होने के बाद क्लेम का पैसा किसे मिलेगा, बराबर। तो ये भी प्रश्न है, वो भी विलंबित रखा है। तो अपना एक्नॉलेजमेंट, डेथ क्लेम, आफ्टर मैरिज नेम चेंज, बहुत सारे लोगों ने लड़की के नाम से पॉलिसी लिया था, भाई शादी के लिए चाहिए, लेकिन उस वक्त पैसा नहीं मिला। आज लड़की की शादी हो गई, नाम चेंज हो गया, लड़की के नाम से पैसा रखा था तो वो लड़की को मिलना चाहिए, इसलिए आफ्टर मैरिज नेम चेंज का एक स्लॉट उसमें आया। तो ऐसी जो प्रॉब्लम हम सब लोग फेस कर रहे हैं। एंडोर्समेंट 2011 में शुरू हुई थी। जब ग्वालियर में प्रॉब्लम हुई थी तो सारे लोग घबर गए थे, भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत सारे कस्टमर की जो पॉलिसी थी वो बहुत सारे एजेंट्स लोगों ने खरीदी थी। तो उनको कंपनी की तरफ से नया सर्टिफिकेट नहीं अलॉट किया था, तो कंपनी की तरफ से एक एंडोर्समेंट का लेटर अलॉट किया था, बराबर है। तो उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। दूसरी एक चीज़ थी कि जिसकी मैच्योरिटी कंप्लीट हुई है, जब पीएसएल का ये माहौल चल रहा था 2014 का, और उस पीरियड में जिसकी मैच्योरिटी हुई थी और कंपनी के सारे अकाउंट फ्रीज होने के बाद कारण कंपनी किसी को उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रही थी, तो कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी के लेटर हेड पे कस्टमर को एक सर्टिफिकेट का मतलब जैसे सर्टिफिकेट का नमूना होता है उस हिसाब से टाइपिंग करके देती थी कि भाई इस रोज आपकी मैच्योरिटी पूरी हुई है, लेकिन आज कंपनी आपको पैसा नहीं दे सकती है, इसलिए यह एक्सटेंड करके अगले 6 साल के लिए कंपनी के पास रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम थी, ये सारी प्रॉब्लम जनलोक प्रतिष्ठान ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखी है। लेकिन जब तक हम लोग सारे मिलके कंप्लेंट के माध्यम से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनेगी। जैसे सेबी ने पेपर आउट किया था, पीएसएल कंपनी में 5,85,00,000 कस्टमर है। कितने? 5,85,00,000। कभी कभी ज़्यादा भी लिख देते थे, 6 करोड़ कस्टमर है, बराबर है। तो हमें मालूम है कि 6 करोड़ कस्टमर हमने कैसे बनाए हैं। अभी बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए लोगों के मनों में वो प्रश्न है। जब प्रश्न उत्तर का जो सेशन आएगा उसमें आप जो भी सवाल करोगे उसके जवाब दाएं से आपको मिलेंगे। लेकिन हम क्या करते थे, कंपनी की तरफ से जब वन डे कंपटीशन लगता था, हम किसी कस्टमर के पास जाते थे, कस्टमर ने हमें 2 लाख रुपया दे दिया, तो 2 लाख कैश हम कंपनी में नहीं भर सकते थे। हम क्या करते थे, उस 2 लाख के 20-20 हजार के 10 सर्टिफिकेट बनाते थे, बराबर है। तो कस्टमर एक ही है, लेकिन उसके सर्टिफिकेट कितने बने? 10 सर्टिफिकेट बने, बराबर। तो इस तरह से जो
सर्टिफिकेट की संख्या है वो बढ़ती गई। मतलब देखने जाए तो कस्टमर सीमित है, लेकिन सर्टिफिकेट की संख्या जो है वो ज़्यादा है। हमने ऑनलाइन पोर्टल में हमारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्लास रिसीप अपलोड किया, जब रिफंड मिला 2 ही इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला। तो ये कंप्लेंट्स हमें जनलोक तक पहुंचानी है, क्योंकि कस्टमर की आवाज़ सिर्फ जनलोक ही माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकता है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कस्टमर के लिए काम करते हैं, हमने कस्टमर के लिए ये किया, कस्टमर के लिए वो किया। अगर आप उन्हें जब वो आपके पास आते हैं, आपको सारी चीज़ें बताते हैं, तो सिर्फ आप उनको एक सवाल पूछना कि आज की डेट तक सुप्रीम कोर्ट में आप कितनी बार जाके आए हो और कौन से संगठन के साथ आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो। आज पूरे भारतवर्ष में जनलोक प्रतिष्ठान एक अकेला ऐसा संगठन है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर है और जो कस्टमर के सारे प्रॉब्लम्स लेके सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है। जहाँ जब आंदोलन करना पड़ा, जब मोर्चे निकालने थे, तब जनलोक प्रतिष्ठान ने हर एक आंदोलन को, हर एक मोर्चे को सपोर्ट किया। लेकिन जब हमें कोर्ट में हमारी लड़ाई लड़नी है तो कोर्ट में हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने ज़रूरी है। भले आपने 1 करोड़ रुपया PSL कंपनी में भरा है और आप सबको बोले अरे मेरा तो 1 करोड़ है, मेरा तो 2 करोड़ है, मेरा 5 करोड़ है, लेकिन 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का कुछ मतलब तो होगा ना। कंपनी ने आपको सर्टिफिकेट तो दिया होगा ना, तो उस सर्टिफिकेट को लेके आप जब तक कंप्लेंट नहीं करोगे तब तक उसके ऊपर सुनवाई नहीं होगी। तो इस दाय से आपसे यही नम्र निवेदन है कि ये जो कंप्लेंट्स लेने का जो कैंपेन चल रहा है, उस कैंपेन में आप सहभागी होके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी कंप्लेंट्स दर्ज करवाएं। उस कंप्लेंट को दर्ज करने के लिए हमने एक एक्सेल शीट का फॉर्मेट भी दिया था, जो आपको वडोदरा के हेल्पलाइन सेंटर से आपको मिला भी होगा। उस एक्सेल शीट में हमने लिखा था PSL कस्टमर का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट, CDPP IPP जो था, उसकी पॉलिसी कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई, उसने ऑनलाइन पोर्टल में डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं नहीं किए हैं, एक ऑप्शन रखा था वहाँ पे। जिन्होंने ऑनलाइन सबमिट किया है उन्होंने वहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन का कारण लिखना है, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने नॉट सबमिटेड लिखना है। तो ऐसा एक्सेल शीट हमने बनाया था। उस एक्सेल शीट के माध्यम से हमने बहुत सारे लोगों से कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है, लेकिन जो संख्या होनी चाहिए वो संख्या आज भी नहीं है। क्योंकि जब हम उसके ऊपर काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई अगर 6 करोड़ कस्टमर है तो 6 करोड़ कस्टमर की जो तादाद है उस हिसाब से कंप्लेंट भी आनी चाहिए। देखो, संगठन इसलिए खड़ा हुआ है, मैडम ने अभी आपको बोला कि संगठन का मतलब है संगठित होना, एकत्रित होना, यही संगठन है। और संगठन की ताकत भी यही होती है, जो संगठित हुए लोग हैं वही संगठन की ताकत होती है। जब हमारा देश जब हमारे देश के ऊपर अंग्रेज राज कर रहे थे तो उन्हें एक चीज़ पता थी कि इस देश के लोग ना कभी एकत्रित नहीं होंगे। तो वो क्या करते थे, हमें आपस में लड़ा देते थे, डिवाइड एंड रूल। तब वो काम अंग्रेजों ने किया था, आज वो काम सेबी कर रही है, और जो हमारे बीच में छुपे गद्दार है ना वो चीज़ कर रहे हैं। एक तो खुद कुछ नहीं करना है, लेकिन जो कर रहा है ना उसकी भी टांग खींचना है। आपने वो केकड़े को हिंदी में क्या बोलते हैं, केकड़ा ही बोलते हैं ना। हाँ, वो केकड़ा के हाँ, करचला गुजराती में। तो उसकी हैबिट क्या होती है, एक बर्तन में आप 5-10 केकड़े रख दो, ठीक है, और उसका ढक्कन खुला रखो। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पैर रख के ऊपर आने की कोशिश करते हैं। जो ऊपर आता है ना तो नीचे वाले उसको भी टांग पकड़ के उसको खींचते हैं। तो है ऐसे बहुत सारे गद्दार लोग हमारे बीच में भी है।
जो संगठन का अच्छा काम चल रहा है वो लोगों को संगठन के बारे में भड़का रहे हैं। ये संगठन कुछ नहीं करेगा, संगठन अभी ये है, संगठन का वो हो गया, ये हो गया। अगर संगठन काम नहीं करता तो आज संगठन इतने ऑल ओवर इंडिया में काम नहीं करता। और संगठन में अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती तो संगठन लोगों से रूबरू भी नहीं होता। जो काम करता है ना वही सामने आता है। जैसे मैंने बोला कि आप लड़ो, हम कपड़े संभालते हैं, तो लड़ने वाले हम हैं, हमारे कपड़े संभालने वाले बहुत सारे लोग हैं पीछे। तो मेरी एक ही विनती है कि भीड़ का भाग मत बनो, बराबर कि नहीं। जब हम PSL में काम करते थे तो हमारे सीनियर हमें यही बताते थे ना कि भाई नौकरी तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो हमें नौकरी नहीं करनी है, हमें अलग कुछ करना है, हमें हमारी पहचान बनानी है, बराबर। तो पहचान बनाने के लिए क्या करना है, बिजनेस करना है। तो क्या बिजनेस करना है हम आपको बताएंगे, बराबर है। तो हमारे सीनियर ने बिजनेस तो बता दिया, लेकिन अब समय आया है पैसा निकालना, तो हमारे सीनियर सब गायब हो गए। तो इधर सीनियर जूनियर का मतलब नहीं है, जो लड़ेगा उसे ही पैसा मिलेगा। और जन लोग का मेन मोटो यही है कि जब तक आखिरी कस्टमर तक पैसा नहीं जाता है तब तक ये संघर्ष है वो जारी रहेगा। और पोर्ट में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आई है। आज भी अगर आप पोर्टल पे जाते हैं www.cbpslrefund.co.in, तो आप जाके आपके क्लेम का स्टेटस वहाँ पे चेक करते हो, बराबर है। करते हो कि नहीं करते हो? ये खाली जिसको पता है उसको फोन करके पूछते हो भाई क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हम एक्टिव होंगे तो ही काम बढ़ेगा, क्योंकि आज यहाँ पे जो पब्लिक आई है, आप अगर ठीक से जानकारी लोगे तो आपसे जुड़े जो 10-15 लोग हैं उनको आप जानकारी दे सकोगे। आप ही ठीक से नहीं सुनोगे, आपको ही कुछ पता नहीं चलेगा, तो आप जाके आगे लोगों को कुछ डिटेल नहीं दे पाओगे। तो हम लोग जब स्टेटस चेक करने जाते हैं तो कभी कभी क्या आता है कि आपको PSL कंपनी की तरफ से लैंड अलर्ट हुआ है, बराबर, लेकिन हमारे पास कंपनी की तरफ से कुछ अलर्टमेंट लेटर आया ही नहीं है। दूसरा पॉइंट ये था कि हमने जब ऑनलाइन आवेदन किए थे वहाँ पे एक नीचे लास्ट वाले कॉलम में लिखा था वेदर लैंड अलर्टेड यस और नो, बराबर। बहुत सारे भाई लोगों ने साइबर कैफ़े में फॉर्म भरा था, साइबर कैफ़े वाले ने उनको पूछा नहीं, डायरेक्ट वहाँ पे यस टिक कर दिया। तो जिनको कंपनी की तरफ से लैंड अलर्ट हुई है और जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल के आवेदन करते समय लैंड अलॉटमेंट पे यस किया है, उनका पेमेंट अभी स्थगित रखा है, उनका पेमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है। तो वो भी प्रॉब्लम जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है कि भाई ऑनलाइन पोर्टल में ऐसी ऐसी बातें हो रही है, कस्टमर की ने अलॉटमेंट पे यस किया है, वो उसकी गलती है, तो उसके लिए गलती हुई है, लेकिन उसका सुधार होने के लिए भी कुछ प्रावधान होना चाहिए। तो वो चीज़ हमने कोर्ट में रखी है। PSL कंपनी की तरफ से जिनको लैंड अलॉटमेंट हुई है, ऐसा आ रहा है, बहुत सारे कस्टमर को आता है कि भाई आपको PSL की तरफ से लैंड अलॉटमेंट हुई है, इसलिए अभी आपका पेमेंट नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग चेक करने जाते हैं तो उनको आता है कि भाई अभी आपका क्लेम जो है वो अंडर प्रोसेस है, बराबर। हम क्या करते हैं, अभी सेबी स्लॉट वाइज लोगों को पैसा दे रही है, 2500, 5000, 7500, 10,000। अभी कंपनी 19,000 तक का क्लेम दे रही है, बराबर। हमने भरा है 25,000 रुपया या हमने भरा है 30,000 रुपया। हम उस पोर्टल पे जाके क्या करते हैं, हमारा नंबर डालते, सर्टिफिकेट नंबर डालते, फिर कैप्चा नंबर डालते, फिर वहाँ पे आता है कि आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो अभी तक प्रोसेस के लिए नहीं आया है। फिर हम क्या करते हैं, उस चीज़ को समझते नहीं है। हम क्या करते हैं, जो हमारा इमीडिएट पहचान वाला होगा, जिसको जानकारी, हम उसको तुरंत फ़ोन करेंगे, यार अभी 19 तक सबको मिल रहा है, मेरा कब नंबर आएगा। अगर आपने 30,000 भरा है तो 19 के बीच में आपका नंबर आने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखा था 7.5, 10, 15, उनका भी ये सवाल है कि भाई 19,000 का पेमेंट शुरू हुआ है तो हमारा नंबर कब आएगा। तो बहुत सारे कस्टमर ने क्या किया है
ज़्यादा पेमेंट दिया है, लेकिन उसका डिवाइडेशन करके सर्टिफिकेट मिला है, उसके कारण उनका नंबर अभी नहीं आया। अभी लास्ट टू लास्ट हियरिंग में एक कस्टमर ने उनका वकील अपॉइंट किया था, और जब उस वकील का टर्न आया तो जज ने उनको पूछा कि भाई आप किस सिलसिले में यहाँ पे आए हो। तो उन्होंने बोला कि मेरे कस्टमर ने PSL कंपनी में पैसा भरा है, लेकिन अभी तक उसको पैसा नहीं मिला। तो सेबी के जो वकील है, धुरंधर है वो, बहुत चाणक्य बोलते ना, वैसे चाणक्य है वो। तो उन्होंने उसको पूछा कि भाई आपका कस्टमर का क्लेम अमाउंट कितना है। तो उन्होंने बोला 12.5 लाख रुपया उसका क्लेम अमाउंट है। तो जज भी हंसने लगे और सेबी का वकील भी हंसने लगा। मतलब आज जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, जो सेबी जाहिरात के माध्यम से भेज रहे हैं, हम इतने का पेमेंट कर रहे हैं, उतने का पेमेंट कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर भी गौर नहीं कर रहे हैं कि भाई 19,000 का पेमेंट अगर चल रहा है तो मेरा 12.5 लाख का पेमेंट कब मिलेगा। लेकिन ये चीज़ जन लोग ने सुप्रीम कोर्ट में रखी है कि ये जो सेबी की तरफ से लोगों का रीपेमेंट का प्रोसेस जो चल रहा है वो हार्ड एंड फास्ट होना चाहिए। आप अगर अभी 10 साल में अगर 20,000 रुपया दोगे तो जिसने करोड़ रुपया भरा है वो तो बेचारा पैसे लेने से पहले ही मर जाएगा, बराबर है कि नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी है कि भाई हमारा पैसा कब मिलेगा, मरने के बाद। तो भाई मरने के बाद तो किसी को भी नहीं मिलेगा, और लेना है तो हमें जिंदे समय ही लेना है। और ये जन लोग ने दावा किया है कि 100, अभी जन लोग अपना जयमेश जी ने बोला 100% नहीं, 1001% जन लोग के माध्यम से सब ग्राहकों का पैसा उनके घर पे जाएगा। और जब तक लास्ट कस्टमर तक पैसा नहीं मिलता है, जन लोग इसी तरह से संघर्ष करती रहेगी। अभी पोर्टल के बारे में जब सवाल जवाब हो गए, किसी के बारे में पोर्टल के सिलसिले में कुछ सवाल हो गए, जवाब हो तो सवाल पूछ सकते हो, यहाँ से आपको जवाब मिलेंगे। आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि अभी 2-3 जो मेन स्पीच है वो बाकी है। आप लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली प्रोसेस सुनने के लिए आए हो, तो पोर्टल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा। पोर्टल के ऊपर काम करना है, और वो हमें जब तक हमारा पैसा मिलता नहीं है तब तक हमें पोर्टल पे काम करना है, बराबर। लास्ट चीज़ जो है, हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन पोर्टल पे आवेदन नहीं किया है। तो हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाला है कि भाई जिन लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पे अपने फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं उनके लिए जल्द से जल्द पोर्टल ओपन करने का प्रावधान करें, ताकि जिन लोगों का एप्लीकेशन नहीं आवेदन नहीं गया है ऑनलाइन, उनका भी आवेदन आए और वहाँ कहीं पे जाके कस्टमर की लायबिलिटी फ्रीज हो कि भाई इतने लोगों का हमें पैसा देना है। आज सेबी के माध्यम से जो पेमेंट कस्टमर को बांटा जा रहा है, वो पेमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से जो पेमेंट इंडिया में आया था, और वही पेमेंट आज कस्टमर को स्टेप बाय मतलब टुकड़े टुकड़े में बांटा जा रहा है, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 में। बहुत सारे लोगों के अकाउंट में 1 रुपया जाता है और बाकी की अमाउंट आती नहीं है। तो ऐसे हालत में आपने वहाँ पे जाके कंप्लेंट करनी चाहिए कि भाई मेरा जो अमाउंट है, मूलधन जो है मेरा वो 6,000 है, 7,000 है, लेकिन सेबी ने मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 रुपया भेजा है, उसके बाद पेमेंट आया नहीं है। तो सिर्फ बोलना नहीं है, आपको एक रिटर्न में एप्लीकेशन देना है, साथ में आपके बैंक पासबुक का जेरॉक्स देना है, पिछले 6 महीने का या साल का। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पेमेंट हमारे अकाउंट में आया भी होता है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर गौर नहीं करते, इसलिए हमें पता नहीं चलता है, और हम पूछने जाते तो बोलते अरे उसका तो पेमेंट हो गया है, ऐसा ऐसा है। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन किए थे, उन कस्टमर के आवेदन डिफिशियंसी की वजह से सेटलमेंट के लिए नहीं गए हैं। तो सेबी की तरफ से 3-3 महीने का समय दिया जा रहा है। 15,000 तक के पेमेंट वालों का लिए ये समय है, 19,000 वालों के लिए इतना समय है। तो वो जो 3 महीने का समय दिया जाता है, उस 3 महीने के समय में हमें वो हमारा क्लेम जो है वो रेक्टिफाई करना है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम जो दिखाई जाती है वो बैंक की रहती है।
कि भाई आपने जो बैंक अकाउंट पोर्टल में सबमिट किया है वो गलत है या आपके नाम पे नहीं है। यही आता है कि नहीं आता है? आवाज़ नहीं आ रही है किसकी? बराबर है ना? तो यही प्रॉब्लम है कि आपके नाम से अकाउंट नहीं दिखाई दे रहा है या आपने जो अकाउंट डिटेल अपलोड किए वो गलत है। तो हमें क्या करना है, हमें उस पोर्टल पे जाना है। पोर्टल पे जाने के बाद पहले जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को डिलीट मारना है। मतलब जो अपने बैंक की डिटेल पहले अपलोड की थी उसको डिलीट करना है। और अगर आपको नई बैंक डिटेल भी डालनी है तो भी आप डाल सकते हो, लेकिन पुरानी आपको कंटिन्यू करनी है तो पुराने बैंक की डिटेल आपको सही से देनी है। कभी कभी क्या होता है, गलती से अकाउंट नंबर टाइप करने के टाइम समय छूट जाता है, कहीं पे 6 जीरो होते हैं, हम 5 ही जीरो डाल देते हैं, तो वो अकाउंट नंबर मिसमैच हो जाता है। उसकी वजह से हमें हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आते। तो पोर्टल के माध्यम पोर्टल से रिलेटेड जो भी कोई शिकायत आपकी होगी वो सारी शिकायतों के ऊपर हम लोग उसका समाधान निकालेंगे और वो समय समय तक आप तक पहुंचाया जाएगा। जाते जाते एक शेर अर्ज करता हूँ। ये धरा साथ दे तो और बात है, ये धरा साथ दे तो कुछ और बात है, ये गगन साथ दे तो कुछ और बात है। यूँ तो एक पैर पे चलते हैं बहुत लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। आज जनलोग की हालत ऐसी है, जनलोग एक पैर पे चल रहा है तो हमें जनलोग का दूसरा पैर हमें बनना है। तो मेरे 2 शब्द यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय महाराष्ट्र, जय जनलोक। मैं चाहूंगा अभी सर जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद राजेश जी। वडोदरा में हो रही आज की इस मीटिंग में उपस्थित जनलोक प्रतिष्ठान के अध्यक्षा आदरणीय कदम मैडम, हमारे साथ आए हुए रुकुनर जी, सचिन जी, साथ में आए हुए चौगले जी, कांचन मैडम, और इस मीटिंग का जिन्होंने आयोजन किया है ऐसे जयमेश जी, नगीन भाई जी, राजेश जी, सोलंकी जी और बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इस मीटिंग का आयोजन किया। उन सबको मैं रिस्पेक्ट देता हूं। और आप सब लोग, जो लोग यहाँ के लोकल के भी हैं और मुझे सुनने में आया कि कुछ लोग सूरत से भी आए हैं, तो बहुत दूर दूर से आए हुए आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ। और मैं अपने कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहूँगा। दोस्तों देखो कि कोई बात मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट पे बोलूँगा। पीएसएल का पैसा 2014 में कंपनी बंद हो गई, 2016 में लोडा कमेटी का गठन हो गया, लेकिन लोगों का पैसा 2014 से नहीं फंसा है, उसके पहले से फंसा है। 2006 के लोग कुछ इन्वेस्टर रहेंगे, 2007 के, 8 के, 9 के, तो 2006-7 की बात करेंगे और 2025 के आज के डेट की में बात करेंगे तो कितने साल हो गए? 18-19 साल हो गए लोगों का जो पैसा है वो फंसा हुआ है। और जो लोडा कमेटी बैठी है वो लोडा कमेटी 2016 से काम कर रही है। 16 से अभी तक कितना टाइम हो गया? कितना हो गया सर? इधर साइड में जो कौन बात करे थोड़ा सा उनको बोलो अपने। आज 8 साल 9 साल हो गया लोडा कमेटी बन के, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि लोगों का पैसा दे दे। जबकि कोर्ट का पहले जो ऑर्डर हुआ था वो ऑर्डर ऐसा हुआ था कि 6 महीने के लिए टाइम दिया था और 6 महीने में स्टेटस जो भी रहेगा वो देने के लिए लोडा कमेटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो सब लोगों के दिल में एक खुशी आ गई थी कि 6 महीने में लोगों का पैसा मिलने वाला है, फरवरी से अगस्त तक। क्या हुआ? मिला? 6 महीने में मिला, 1 साल में मिला, 2 साल में मिला, 2025 आ गया अभी तक नहीं मिला। सच है कि नहीं? क्योंकि जो पैसा मिला है, अभी जो लोडा कमेटी बता रही है कि 2500 से लेके 19,000 तक का हमने पैसा दिया, मिला है सबका पैसा?
नहीं मिला है पैसा। अभी जो लोढ़ा कमेटी की जो रिपोर्ट है हमारे सामने, मेरे सामने रिपोर्ट है, मैं आपको उसके आंकड़े थोड़े से बताऊंगा। 2500 के जो क्लेम लोढ़ा कमेटी के सामने जो दिए गए, सबमिट किए गए, वो है 14,50,000। 14,50,000 के 2,500 के क्लेम दिए गए हैं। उनमें से उन्होंने जो पैसा दिया है वो सिर्फ 1,90,000 लोगों का दिया है। मतलब 2,500 के भी अभी तक 12 लाख क्लेम बाकी है। अगर हम 5,000 तक की बात करेंगे तो उसके क्लेम जो सबमिट हुए थे वो है 16 लाख। दिए कितने लोगों के हैं? सिर्फ 4 लाख, 3,81,000 थे। उसके बाद 5,000 से लेके 7,500 के बीच जो क्लेम सबमिट थे वो थे 8,32,000। दिए गए क्लेम है 2,60,000। उसके बाद 7,000 से लेके 8,000 तक के जो क्लेम थे वो क्लेम थे 6.5 लाख, 6.5 लाख। दिए गए कितने? 1,30,000। 8,000 से लेके 10,000 तक के जो क्लेम थे जो पोर्टल पे जमा किए गए थे वो थे 14 लाख। दिए गए कितने हैं? 2,70,000। 10,000 से 15,000 के बीच में जितने क्लेम अपलोड किए गए थे वो थे 20,42,000। दिए गए कितने? सिर्फ 5.5 लाख। उसके बाद 15,000 से 17,000 तक के क्लेम सबमिट किए गए, 5,11,000। मिले कितने? सिर्फ 1 लाख लोगों को मिला है। फिर 17,000 से 19,000 तक के जो क्लेम है वो क्लेम कितने हैं? 4,11,000 के हैं। मिले कितने लोगों को? 1,13,000 लोगों को। मतलब आप लोग अगर देखेंगे तो ये जो क्लेम है 2,500 से लेके 19,000 तक के वो जो क्लेम सबमिट किए गए थे वो है कुल मिला के 90 लाख। 90 लाख क्लेम सबमिट किए गए, उसमें से सिर्फ 20 लाख लोगों को पैसा मिला है। मतलब 2,500 से 19,000 तक की हम बात करेंगे तो उसमें भी अभी तक कितने लोगों का बाकी है? 70 लाख लोगों की बाकी है। और जो अमाउंट दी गई है वो अमाउंट कितनी दी गई है? 1,021 करोड़ की अमाउंट दी गई है। और टोटल सेबी के पास जो क्लेम अमाउंट गई है, टोटल की बात मैं कर रहा हूं, वो है 28,000 करोड़। 28,000 करोड़ की टोटल क्लेम अमाउंट है। उसमें से 1,000 करोड़ आ गई है। इसका मतलब है लगभग खाली 3% लोगों को पैसा मिला है। बराबर ना? खाली 3% लोगों को पैसा मिला है। अभी कितने बाकी है? 97%, 97% लोगों का पैसा बाकी है। और टाइम कितना गया है? लोढ़ा कम्युनिटी की बात करिए तो 8 से 9 साल हो गए, लेकिन लोगों का फंसा। कस्टमर तो ये नहीं बोला ना लोढ़ा कम्युनिटी की बात कर, नहीं बोले वो जब से उसका डाला है उसने डिपॉजिट का, उस टाइम से हमको गिना था। सही ना? जब फोन पे बात करते हो क्या बोल रहे हैं? 7-20 साल हो गया, अब ऐसे बोल रहे हो। तो दोस्तों देखो कि 20 लाख लोगों का पैसा मिला है। टोटल क्लेम अमाउंट है 28,000 करोड़। टोटल एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ और 28,000 करोड़ की टोटल मतलब दे अमाउंट है। देखिए अब इस चीज को अभी से लोढ़ा कमेटी शुरू होने के बाद अभी 8-9 साल हो गए, अभी तक खाली 19,000 ही चल रहा है। तो जिसका पैसा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ है, उसका कब मिलेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पता ही नहीं। कोई किसी को हम फोन करते वो भी बोलता है पता नहीं। फिर भी कब तक मिल सकता है? फिर भी नहीं पता। यही होता है ना। देखो इसके लिए इनडायरेक्ट जिम्मेदार कौन है? इसके लिए इनडायरेक्टली जिम्मेदार हम सब हैं। थोड़ा सा आपको अचंभित लगेगा लेकिन ये सच बात है। इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि मां भी अपने बच्चे को क्या करती है? मां भी अपने बच्चे को रोए बिना पिलाती है क्या? पिलाती है?
यहाँ कौन सी ऐसी माँ है बोलो जो माँ अपने बच्चों को बिन रुलाए दूध पिलाती है? जब वो छोटा रहता है ना, वो 8 दिन का, महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का, 3 महीने का जो बच्चा होता है उसको माँ कब दूध पिलाती है? बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, इधर उधर देख रहा है, माँ दूध पिलाती है। कब दूध पिलाती है? जब तक बच्चा रोता नहीं। बराबर ना? ये अगर सत्य परिस्थिति है अपने बच्चे के लिए, अपनी माँ अगर रोने के बाद ही अगर दूध पिलाती है, तो ये लोग बिन कुछ किए बिना पैसा देने वाले हैं। मानते हैं आप लोग? देंगे पैसा? 100% नहीं देंगे पैसा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि इसके लिए इनडायरेक्ट जिम्मेदार कौन है? कौन है इनडायरेक्ट जिम्मेदार? हम सब लोग हैं। अभी देखो, आज की सभा का एक एग्जांपल यहां कर देता हूं अभी का। इस सभा का जब आयोजन हो गया तो हम कल शाम को इधर आए, तो जल्दी आए तो हमने सोचा चलो इधर आते हैं। तो हमने देखा कि कैसा हॉल है, क्या अरेंजमेंट किया है सब। तो मुझे लगा कि थोड़ा कल दोपहर को गर्मी हो जाएगा, तो मैंने किसी से पूछा, तो शायद जमीर जी से पूछा था या नगीन जी भाई से पूछा था कि यहाँ कुछ फैन का व्यवस्था है? तो बोले हाँ हाँ वो लगेगा, फैन लगेगा। सब लोग आप आए, लगा था फैन? लगा था क्या? जब मैं इधर बैठा और मेरे को गर्म होने लगा तो मैंने इनको पूछा, अरे फैन का क्या हो गया? तुरंत फैन लगना शुरू हो गया। तो इसका मतलब क्या है? हाँ, अगर नहीं पूछते, नहीं बोलते तो ये फैन लगने वाला। समझे बात? तो इसके लिए इनडायरेक्ट जिम्मेदार कौन है? और भी अगर हम ये सोच रहे हैं कोई तो करेगा, कोई तो आंदोलन करेगा, कोई तो कोर्ट में जाएगा, कोई तो लड़ाई लड़ेगा और मेरे कस्टमर का पैसा मिलेगा, ये अगर आप लोग सोच रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की। पैसा ऐसा कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा पैसा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। बराबर है ना? मानते हो कि नहीं? यस और नो? हमको लड़ना पड़ेगा। अगर यहां बैठा अगर सोच रहा है कि लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए तैयार है ना? सच में थोड़ा सा हाथ ऊपर करके, हाँ मुझे भी पता चले। कुछ लोग आधा हाथ खड़ा कर रहे, इसका मतलब क्या है? आधा ही सपोर्ट रहेगा पूरा ना? हाँ, तो इस भाई ने साहब ने तो 2 हाथ खड़े कर दिए, बहुत बढ़िया बात है। तो लड़ना पड़ेगा। तो लड़ना पड़ेगा तो कैसे लड़ेंगे? यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति अकेला लड़ सकता है? इंडिविजुअल लड़ सकता है? पॉसिबल नहीं है। 10-20 लोग मिलकर लड़ सकते हैं? नहीं। पूरे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो कि नहीं? अगर पूरे देश का पैसा फंसा हुआ है तो पूरे देश से सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ? और उस देश में सब लोगों का अगर हम बात करें तो उसमें मेरा इंडिविजुअल, मेरा योगदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ऐसा और मानते हो कि नहीं? तो हरेक का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरेक लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होके सही रास्ते से जाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बात बोल रहा हूं अभी, ध्यान से सुन लेना। सही रास्ते पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? देखो, मेरे को अगर मुंबई जाना है, मेरे को मुंबई जाना है तो मैं मुंबई का रास्ता पकड़ा तो ही मुंबई जाऊंगा ना। अगर मैंने उल्टा दिल्ली के रोड से अगर मैं जाने लगा तो मैं कभी मुंबई पहुंच पाऊंगा? नहीं ना, नहीं। तो सही रास्ते से जाना चाहिए। सही रास्ता मतलब क्या है कि आज के डेट में जितने भी देश भर में संगठन है, हर संगठन दावा कर रहा है कि मैं लोगों का पैसा दिलाऊंगा। हर संगठन बोल रहा है। तो हर संगठन ये बोल रहा है और हम विश्वास करके चल रहे, मान के चल रहे
तब भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि संगठन तो हर कोई बना सकता है। संगठन बनाना बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। संगठन बनाना बड़ी बात नहीं है। संगठन बना के लोगों का पैसा देने के लिए जो चीजें करनी चाहिए, जो कोर्ट में जाना चाहिए, वो कोई नहीं कर रहा है। बहुत ध्यान से सुनो भैया, आज की डेट में 100-200 के ऊपर संगठन है पूरे देश में, 100-200 के ऊपर, और हमको पता नहीं चल रहा कि कौन सा संगठन अच्छा है। तो हम क्या कर रहे हैं? विश्वास रख रहे हैं, रखते हैं ना? हा? कल रात जब हम आए, परसों नहीं, कल सवेरे 5 बजे आज आए हम। क्या हो रहा है आप लोगों का मैं बता रहा हूं, मैंने एग्जाम्पल देख लिया। तो जब सुबह आए हम 5 बजे, तो हमको होटल का एड्रेस पता नहीं था। जो होटल इन्होंने बुक कराया था वो होटल का एड्रेस पता नहीं था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमको गूगल लोकेशन दिया था। तो गूगल लोकेशन ने क्या कर दिया, 3-4 बार इधर उधर घुमाया, मिल नहीं रहा था। ऐसा आपका भी होता है? हुआ है। देखो, तो गूगल लोकेशन भी कभी कभार क्या कहता है, मार खा जाता है। जहां भीड़ वाली जगह होती है तो उसको घुमाया। अब देखो, इनको किसी को फोन लगाया इन्होंने, ठीक है, हाँ, इन्होंने किसी ने फोन किया, वो बोल रहे ऐसा जाओ वैसा जाओ, समझ में नहीं आ रहा है। अबे सुबह 5 बजे तो रास्ते में भीड़ भी नहीं थी, तो एक भाई साहब मिल गए। तो भाई साहब देखो, अनजान आदमी है, किसी को पूछेगा और वो बोलेगा ऐसा जाओ तो वैसे ही जाएंगे ना। वही हुआ, एक रिक्शा वाले से हमने पूछ लिया, सुबह 5 बजे एक रिक्शा वाले से पूछ लिया। तो रिक्शा वाले ने बताया, अरे सही जा रहे हो, इधर ही जाओ। पूरा उल्टा जा रहे थे, मिला ही नहीं। फिर उधर 8-10 किलोमीटर गए और गूगल लोकेशन फिर बता रहे, नहीं ऐसा जाओ, यू टर्न ले लो, इधर जाओ उधर जाओ। कहने का मतलब क्या है कि 1 घंटा गया इसमें हमारा। यही हो रहा है, कुछ संगठन कर रहे हैं ऐसा ही, लोगों को घुमा रहे हैं। देखो, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखो, हर संगठन का उद्देश्य अच्छा हो सकता है, मैं नहीं मानता कि उनका गलत उद्देश्य है। उद्देश्य अच्छा हो सकता है, मगर उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो रास्ता गलत हो सकता है, या फिर रास्ता भी दिखाया होगा, वो जा नहीं रहे हैं, खाली गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों सुनो, मैं आज इसलिए खड़ा हूं इधर कि जब कंपनी का प्रॉब्लम हो गया 2014 में, 16 में ऑर्डर आ गया, जब से डिले पेमेंट का 60 कोर्ट में जब हमारी केस गई थी, तब से जनलोक प्रतिष्ठान ये संगठन लीगल फाइट कर रहा है, देश में कोई फाइट नहीं कर रहा। आपको विश्वास नहीं लगेगा, अभी तक जो पैसा बटा, इसको शुरुआत जब हो गई वो ऑस्ट्रेलिया का पैसा आने से हो गई। अभी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो अपना प्रॉपर्टी था वो बेची हुई थी, और उसका जो पैसा था वो था 650 करोड़ ऑस्ट्रेलिया की प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी बेची गई थी, तो वो पैसा इधर लाने का था। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया फेडरल कोर्ट में कौन गया? तो जनलोक प्रतिष्ठान गया, सेबी भी नहीं गई थी। विश्वास मानो या ना मानो, सेबी भी नहीं गई थी, तब जनलोक प्रतिष्ठान गई थी। और जनलोक प्रतिष्ठान गई, कोई भी ऐसे जा सकता है, कौन किस पर क्यों भरोसा रखेगा, कौन क्यों एंट्री देगा। इसलिए एंट्री मिली ऑस्ट्रेलिया फेडरल कोर्ट में, क्योंकि जनलोक प्रतिष्ठान के पास 46,000 एप्लीकेशंस थे, कस्टमर का सपोर्ट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मायने रखता है।
46,000 कस्टमर का एप्लीकेशन था, हमारा पैसा फंसा है पीएसएल में, इसलिए ऑस्ट्रेलिया फेडरल कोर्ट ने एंट्री दी, हमारी बात सुनी, जन लोग की बात सुनी। बाद में सेबी को पता चला, अरे यार ये तो जा रहे और ये पैसा इन्हीं को मिलेगा। देखो अभी भी मैंने बात किया, क्या मांगने से मिलता है, ना मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। मांगा किसने? जन लोग ने मांगा ऑस्ट्रेलिया कोर्ट में, तो मिलेगा किसको? जन लोग को मिलेगा। ये जब बात पता चली तब से भी उधर एंटर हो गई। ये रियल फैक्ट है, कभी भी चेक कर लेना। ऑस्ट्रेलिया का जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट चेक करना, रिपोर्ट में भी जन लोग का नाम लिखा है। और जन लोग की वजह से 46,000 की वजह से जब सेबी एंटर हो गई तो उनको सेबी को पूछा गया, अरे भाई आप कौन हो, आपके पीछे कितने कस्टमर हैं? ये रियल फैक्ट है। आपके पीछे कितने कस्टमर है? तो उनके पास कोई कस्टमर ही नहीं था। फिर उन्होंने ऑनलाइन का पोर्टल चालू किया और कस्टमर के एप्लीकेशन लेना शुरू कर दिया। ये उसके पीछे की बात है। तो दोस्तों देखो कि जो पैसा आ गया अभी देश में, अगर हमारे देश में पैसा है तो अपना देश का कानून चलेगा, बराबर ना? तो पैसा गवर्नमेंट के पास गया, सेबी के पास गया, और आज की डेट में ये जो पैसा बढ़ गया। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमको इकट्ठा क्यों होना पड़ेगा? इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको एंट्री उधर मिल गई क्योंकि हमारे पास 46,000 के एप्लीकेशंस थे। सेबी को एंट्री मिल गई क्योंकि उन्होंने क्या किया, फिर ऑनलाइन पोर्टल लेके लोगों के एप्लीकेशन लिया तो उनका सुना गया। तो आज की डेट में अगर हमारे लोगों को 20 लाख लोगों को ही पैसा मिला है, 1021 करोड़ ही मिला है, अभी भी 1 करोड़ 30 लाख लोगों का पैसा आना बाकी है, 27,000 करोड़ आना बाकी है। वो अगर हमको चाहिए तो हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, हमको कोर्ट में एक साथ जाना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ? अगर जन लोग फाइट कर रहा है तो जन लोग के पीछे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि अभी तक जो भी पैसा मिला है केवल और केवल जन लोग की वजह से पैसा मिला है। जितने भी ऑर्डर्स होती है उसमें जन लोग का नाम आता है। तो आज की डेट में अगर हमारा पैसा 97% पैसा अभी आना बाकी है, अगर वो पैसा जल्द से जल्द आना चाहिए तो हम सबको यहाँ बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट देना पड़ेगा, संगठन के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ बैठे किसी को हम ये नहीं बोल रहे कि आपको दिल्ली आना चाहिए, आपको ये नहीं बोल रहे कि आप कोर्ट में हर डेट पे खड़े हो जाओ या हाजिरी लगाओ, नहीं, खाली संगठन के पीछे खड़े हो जाओ। कुछ लोग आगे हैं, ये देखो यहाँ जो मैडम बैठी है, एक लेडीज होकर आज इतना बढ़िया काम कर रही है, इतना बढ़िया काम कर रही है। आप बिलीव नहीं कर रहे हो, मैं भी बिलीव नहीं कर सकता कि इतना कैसे करती है ये, क्योंकि यहाँ बैठे हर एक के पीछे अपना अपना परिवार है कि नहीं? हर एक के पीछे अपना अपना परिवार है, बाल बच्चे हैं, जिम्मेदारियां है, शादी है, बहुत सारे काम रहते, फैमिली है, तो बराबर ना? उसके बावजूद तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं अरे मेरे को टाइम नहीं है, मेरे बच्चे का एडमिशन करवाना है, मेरे को टाइम नहीं है, बीवी मायके गई है, ठीक है, कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन आज की डेट में कदम मैडम हो, कांचन मैडम हो, रुकनर जी हो, सची जी हो, इतना बढ़िया काम करे, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। खाली हमको क्या करना है, क्या करना है? हमको सपोर्ट देना है, उनके पीछे खड़ा होना है, बाकी कुछ नहीं करना। करने वाली ये है, कमिटी है, हमको खड़ा होना है। जितने पैमाने में हम खड़े हो जाएंगे, जितने बड़े एप्लीकेशन आएंगे, जितने ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे, कंप्लेंट्स आएंगे, उतना संगठन को सपोर्ट मिलने वाला है। सुनिए, इकट्ठा इसलिए होना है, संगठन को सपोर्ट देना। सपोर्ट देना मतलब क्या? अपने कितने भी कंप्लेंट्स हो, अपने जितने कस्टमर है उनके कंप्लेंट्स यहां तक आने चाहिए, संगठन के पास आने चाहिए। क्या पता कल ऐसा भी हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे कि जनलों के पास जितने एप्लीकेशन आए उन्हीं का पैसा मिले। दोस्तों देखो, और इससे भी ऊपर मैं एक बात बोलूंगा,
अगर आप सभी लोगों का सही साथ मिल गया, अभी आपको पता है ये स्लो क्यों चल रहा है, ये स्लो क्यों चल रहा है, इसका और एक कारण क्या पता है आपको? ये स्लो इसलिए चल रहा है कि आज की डेट में प्रॉपर्टी बेची नहीं जाती। पता है आपको? प्रॉपर्टी बेचना आज की डेट में बंद है, सेबी बेच नहीं रही। क्यों नहीं बेच रही? क्योंकि उन पे ऊपर रोक लगाई है। क्यों रोक लगाई पता है आपको? वो गलत तरीके से प्रॉपर्टी बेच रही है। 100 रुपए की प्रॉपर्टी 10 रुपए में बेचेंगे, मिलेगा हमारे लोगों का पैसा? मिलेगा? 100 रुपए की प्रॉपर्टी अगर 90 में बेचे, 80 में बेचे तो भी कोई परवाह नहीं है, बराबर ना? लेकिन 100 की प्रॉपर्टी अगर वो 10 रुपए में बेचेंगे, मिलेगा क्या पैसा? ये जब ध्यान में आया, हम लोगों ने शिकायत की, उनका काम बंद करवा दिया। तो दोस्तों देखो, आज की डेट में ये भी एक हो सकता है, अगर आप लोगों का साथ मिल गया तो कल जाके कोर्ट ये भी ऑर्डर कर सकता है कि जनलों की इस पूरे प्रॉपर्टी बेचने का जो सिस्टम है उसके अधिकार जनलों को भी मिल जाए। ये भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो ये भी क्यों नहीं हो सकता? तो ये भी हो सकता है। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि यहां कोई भी आए, अपने लोगों का पैसा ठीक तरह से नहीं मिलेगा, सूद समेत नहीं मिलेगा, ब्याज समेत नहीं मिलेगा, मगर अगर जनलोक आती है तो 100% मिलेगा। मानते हो नहीं मानते? तो ये भी एक हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, काफी टाइम हो गया। मैं ये भी बोलता हूं कि देखिए, संगठन का जो पेपर आपके हाथ में अभी आया है, आपको मिला है पेपर? मिला है? तो इसलिए हमने ये दिया है कि बहुत सारे लोग आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, बहुत सारे लोग सुन पाते नहीं सुन पाते, समझता है नहीं समझता है, कोई बीच में उठ के बाहर गया, कोई लेट आ गया। तो एक पर्ची हमने इसलिए दी है आपके हाथ में कि संगठन क्या काम कर रहा है, जन लोग, ये आप सब लोगों को पता चले। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप 2, 3, 4 बार 5 बार इसको पढ़ो तो पता चलेगा कि संगठन क्या काम कर रहा है, और आपको ये भी पता चला कि ये एक यही है जो असली संगठन है, जो सही रास्ते पे काम करके हम लोगों का पैसा दिलवा सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को सपोर्ट करना है। सपोर्ट का मतलब क्या है? जैसे घोषणा दी जाती है ना कोई बड़े बड़े सभा में, तुम आगे बोलो हम तुम्हारे साथ हैं, पता है ना ऐसा? अभी भी हम आए तब घोषणा दी गई थी, मैडम आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। तो उससे क्या होता है? नहीं दोस्तों देखो, साथ का मतलब यह है कि आपके जितने भी कस्टमर हैं उसके कंप्लेंट्स जनलों के पास आनी चाहिए। साथ का मतलब क्या होता है कि हाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति को, आज ये कानूनन लड़ाई चल रही है तो इसके लिए बहुत पैसा लगता है। आपको मोटा मोटी तो इतना पता होगा कि कोर्ट की वकील की जो फी रहती है वो कुछ कम नहीं रहती। जितना बड़ा वकील, जितना बड़ा कोर्ट, उसकी फी भी उतनी बहुत बड़ी होती है। आज की डेट में जो हम वकील दे रहे हैं उसकी फीस 3 लाख रुपए पर डेट है। 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए एक डेट के लिए। उस डेट में काम हुए या ना हुए, पैसा तो उसको देना है। उस दिन काम चले या ना चले, कोर्ट सुने या ना सुने, वो खड़ा हो गया, वो आया कोर्ट में, मतलब उसका फीस लग गया, उसको देना ही है। तो आप सोचो, पिछले 10 साल से लड़ाई चल रही है, हर डेट में कोर्ट में हम लोग जा रहे हैं, संगठन जा रहा है, बड़ा सा बड़ा वकील देने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? कौन देगा पैसा? कौन देगा पैसा? कौन देगा? हाँ, आवाज नहीं आया? हम देंगे। हाँ, देखो एक 2-4 लोगों की आवाज आ गई, बाकी लोग अभी शांत हो गए। तो खाली घोषणा देने से काम नहीं होगा भैया, समझो आप मेरी बात। हम ये नहीं बोले कि आप कोर्ट में आ जाओ, खड़े हो जाओ, हम ये बोल रहे कि सपोर्ट करो। तो जितने भी आपके कस्टमर के एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आपको देना है, साथ में आपका एक डोनेशन का भी योगदान चाहिए। देखो, जैसे मैंने डोनेशन का नाम लिया, फीस का नाम लिया, बहुत सारे लोग चुप हो गए। भैया अभी चुप रहोगे तो और 150 साल भी लग सकते हैं।
क्योंकि मैं बताऊं ना, अंग्रेज कितने साल के बाद गए? हाँ, 200 साल। 200 साल उन्होंने राज्य किया अपने देश के ऊपर। क्यों? हर एक अपने जैसा ही था, तभी तो 200 साल लग गए। बैठे रहे, चुप बैठे रहे, घरों में चुप बैठे रहे, कोई कंट्रीब्यूशन देगा नहीं। शिवाजी हर घर में होना चाहिए ऐसा सबका मानना है, लेकिन मेरे घर में नहीं। बराबर है ना? सबको लगता है शिवाजी होना चाहिए, शिवाजी होना चाहिए, शिवाजी होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में नहीं। सबको लगता है सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, सबने सपोर्ट करना चाहिए, सबने पैसा देना चाहिए, मगर मेरी बात आती है तो मैं जेब में हाथ नहीं डालता, मैं ऐसा करता। चलेगा भैया? दोस्तों सुनिए, सीरियस ले लो। आज इस मीटिंग का आयोजन क्यों किया? इसीलिए किया कि आप लोगों को डोनेशन देना पड़ेगा, देना चाहिए। जितना जल्दी, जितना बड़ा हम सपोर्ट दे सकते हैं, उतना बड़ा वकील भी हम उधर लगा सकते हैं। भैया सुनिए, आज की डेट में जितना बड़ा वकील, आपको पता है ना, बड़े बड़े जब कोई नेशन लेवल पे कोई मुद्दा होता है तो बड़ा से बड़ा वकील हायर किया जाता है। क्यों किया जाता है? हाँ? आप सबने सुना होगा वो हर्षद मेहता वाले केस में एक वकील थे, राम जेठमलानी, पता है आपको? सुना तो होगा, राम जेठमलानी। तो उनकी फीस कितनी थी पता है? तो जब उनके अकाउंट पे 10 लाख आता था ना, उसके बाद वो पेपर देखते थे। खाली क्या करते थे वो? ये मैं कब की बात बोल रहा हूं, देखो। तो हर्षद मेहता वाला केस हो के आज की डेट में 30 इयर्स हो गए। 30 इयर्स। तब क्यों उनकी फीस थी? अभी नेट पे जाओ, सर्च करो, आपको पता चलेगा। तो आज की डेट में भी बड़े से बड़ा वकील की अगर बात करेंगे तो एक डेट के लिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख फीस होती है। और जितना बड़ा वकील कोर्ट में खड़ा हो जाएगा ना, उतना सीरियसली सामने वाला जो जज रहेंगे, वो जज उनका सीरियसली बात सुनते हैं, उनको सीरियसली लेते हैं। तो आज की डेट में हमारी समस्या यही है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर बड़ा सा बड़ा वकील देना है तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, और पैसा आप लोग जब डोनेशन देंगे तभी आएगा। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग संगठन के साथ खड़े हो जाइए, अपने योगदान से ज्यादा पैसा देने की बात कीजिए। बात खाली मत कीजिए, दे के जाइए, या फिर कल परसों दीजिए। क्योंकि देखिए, अभी एक बहुत अच्छा उदाहरण, मुझे आज 2 उदाहरण मिल गए। मैं जरूर सब मेरे एरिया में जाके बोलूंगा सबको। मेरे जितने इन्वेस्टर्स हैं, जब भी मीटिंग रहेगी तो मैं जरूर 2 बातें बोलूंगा, जो बातें मैंने आज यहाँ देखी। एक बात मैंने क्या देखी कि एक बंदा आ गया, उसके आंखों में आंसू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके आंखों में आंसू क्यों है, जल्दी पता नहीं चला। तो अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तभी मेरे को पता नहीं, वो आके इधर खड़ा है, वो कुछ किसी से कुछ बोल रहा है, तो गुजराती में बोल रहा, तो उतना मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूरा कान लगा के सुन रहा था, कोशिश कर रहा था समझने की, फिर भी पता नहीं चला। लेकिन बाद में पता चला कि वो बंदा यहाँ मीटिंग सुनने के लिए आया था, और यहाँ आने के बाद उसको खबर मिल गई कि उनके जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर थे, उनकी डेथ हो गई। दोस्तों देखो कितना, कुछ लोग कितने सीरियस है। तो डेथ होने के बावजूद भी जब तक हम यहाँ आते नहीं थे तब तक वो बंदा यहाँ से गया नहीं। तो आप तो बोलेंगे बहुत, मतलब वो तो इंसान सैल्यूट करने लायक है, बराबर ना, 100% सैल्यूट करने के लायक है। लेकिन उसके बाद क्या हो पता है? जब इस बात को छेड़ा गया तब मुझे पता चला, और उसने दिया भी। उन्होंने क्या किया, जब हमने पूजा खत्म किया तो उधर ही उन्होंने एक चेक रखा, चेक शायद इधर ही रहेगा कहीं पे। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा चेक मेरे सामने मुझे मिल गया तो अच्छा रहेगा। देखो, तो इस बंदे ने गणपति के सामने चेक रखा था, तो मैं पूजा देख रहा था, तो मैंने उठा लिया और देख लिया, और फिर पता चला। तो फिर ये राजेश भाई और जिग्नेश भाई ने, इन्होंने, जयमेश भाई ने बोला कि ये बंदा हर मीटिंग में चेक देता है। अभी तक उन्होंने एक बार 25,000 दिया है, एक बार 21,000 दिया है, आज 15,000 का चेक दे देगा। तो
तो खाली डेथ हो गई है, उसके बावजूद वो यहाँ खड़ा रहा, जब तक हम आए नहीं तब तक खड़ा रहा, और जाते टाइम चेक देके उधर ही रख के गया। और उसने मैडम को आशीर्वाद देके गए। तो देखो कुछ लोग कितने सीरियस है, हमको भी सीरियस होना पड़ेगा। और एक बंदा मैंने देखा, ये भाई साहब उधर खड़े हैं, क्या नाम है उनका? मयूर भाई। मयूर भाई राजकोट से आए हैं। तो मैं उनको भी चाहूंगा आप एक बार भैया प्लीज खड़े हो जाओ। देखो तो इस बंदे ने कितना सीरियस है बंदा, इस बंदे ने कसम खा रखी है जब तक मेरे कस्टमर का पैसा नहीं मिलेगा तब तक मैं पाँव में चप्पल जूते नहीं पहनूंगा, नंगे पाँव घूमूंगा। डेडिकेशन देखो उनका क्या है। तो दोस्तों मैं यही चाहूंगा आप लोगों को कि आप यहाँ 8 साल 9 साल हो गया अभी तक पैसा नहीं मिला, अभी 10 साल के बाद भी ऐसी एक मीटिंग हो सकती है अगर हम लोग आज सीरियस नहीं होंगे तो, और इसके 20 साल के बाद भी होगी एक मीटिंग। शायद आप और हम ना रहे लेकिन कोई रहेगा और वो लड़ाई करेगा। आपको पता है ऐसे है कि नहीं, मुकदमे है कि नहीं, 30 40 साल 50 साल हो गए कोर्ट में चल रहा है, रिजल्ट नहीं आया। तो हमारे बारे में ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों मुझे कहने का मतलब यही है, जो सही संगठन है, जो सही रास्ते पे चल रहा है, उसको हमको सपोर्ट करना चाहिए। खाली बोलने से सपोर्ट नहीं चाहिए, आपके कंप्लेंट्स हमारे तक आने चाहिए, सबके कस्टमर के कंप्लेंट्स यहाँ तक आने चाहिए। हर सैटरडे मेरे ख्याल से जयवीर जी ऑफिस खोल के बैठते हैं, उनके यहाँ जाइए, उनके कंप्लेंट दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, सब जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो उनको दीजिए, आपका कंप्लेंट यहाँ दर्ज करवाइए। जितने भी सीनियर साथी मैं उनको बोलूंगा अपनी तरफ से 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 5000, 10,000 जो भी रहेगा आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिएगा, डोनेशन दीजिएगा। देने से कभी कम नहीं होता दोस्तों, देने से कभी कम नहीं होता, ज्यादा आता है। ये मैंने खुद अनुभव किया है, करता हूं हमेशा। तो देने के लिए कभी हिचकिचाना नहीं, देना चाहिए, अपनी तरफ से दीजिए। देंगे ऐसा मैं सोच रहा हूं, देंगे ना 100%। एक बार सब लोग मतलब जिनको देना है वो हाथ खड़े करें तो मुझे तसल्ली हो जाए कि ये लोग जाते टाइम देने वाले हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, सबके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां। देखिए जो लोगों ने खड़ा नहीं किया हाथ, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शायद आप कस्टमर हो सकते हो, तो वो बोलेंगे अरे यार ऑलरेडी मेरा 1 लाख फंसा है, 50,000 फंसा है, फिर तू क्या। देखो उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी देना चाहिए। 1 लाख आने के लिए अगर 1000 रुपये और देना पड़ता है तो दे दीजिए ना, क्या बात है। यही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। तो सब लोग देंगे ना, या फिर आखिर में एक एग्जांपल देके मैं अपनी बात खत्म करूं? हाँ, तो दोस्तों देखो एक एग्जांपल दूंगा। जैसे यहाँ हमारी एक मीटिंग चल रही है, ऐसे एक बार क्या हुआ, एक राज्य था वहां सूखा पड़ा। सूखा समझ में आ गया ना, अकाल। अच्छा, अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। तो तभी क्या हो गया कि आकाशवाणी हो गई कि इस मंदिर में दूध से अभिषेक होगा तो सूखा अकाल खत्म हो जाएगा। तो राजा ने तुरंत क्या करी, एक मीटिंग बुलवाई और बोला कि अरे ऐसा है तो सब लोग दूध देंगे, ठीक है, तो सब लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, देना चाहिए। आकाशवाणी हुई है तो राजा ने क्या किया, मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा सा ऐसा गमेला रखा, उसको क्या बोलेंगे, बड़ा 5000 लीटर का ऐसा हौज, गुजराती में हौज बोलते हैं। हौज। अच्छा ठीक है, तो वो ऐसा रखा और पूरे देशवासियों को उन्होंने आह्वान किया कि रात में आपको क्या करना है, अपना अपना 1 लोटा 2 लोटा 1 बाल्टी ऐसा जो दूध है वो रात में आपको क्या करना है, वो हौज में डालना है। तो सुबह हम क्या करेंगे, देवी को हम अभिषेक करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, तो अकाल खत्म हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। यहाँ भी इसलिए हम पढ़े आए ना अकाल के लिए, पीएसएल के लिए। तो क्या हो गया, राजा बहुत खुश, पूरी जनता देगी दूध और सुबह हम अभिषेक करेंगे।
रात में क्या हो गया, हर एक ने ऐसा सोचा सब लोग दूध डालने वाले हैं, मैं पानी थोड़ा सा डालूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। क्या सोचा, क्या सोचा, सब लोग डोनेशन देने वाले, मैं दूंगा ना दूंगा तो क्या होगा। तो सब लोग दूध डालने वाले हैं, मैं पानी डालूंगा तो क्या होगा। जब सुबह हो गई और सब लोग जब आए, वो चौक में आ गए मंदिर के सामने, देखा वो हौज में कितना दूध है और कितना पानी है। भाइयों आपको आश्चर्य होगा, पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था, दूध ही नहीं था। तो मैं सोचता हूं कि ऐसा ना हो, बराबर ना। वैसे भी गुजराती भाई लोग बहुत दिलदार होते हैं, बिजनेस वाले होते हैं, पूरा देश उनसे आदर्श लेता है, धंधे की आदर्श लेता है ना। तो मैं सोचता हूं कि आप सब लोग जनलों के साथ खड़े हो जाइए, कंप्लेंट्स दीजिए, डोनेशन दीजिए। यही आशा के साथ मैं मेरे 4 शब्द खत्म करता हूँ। थैंक यू।